for conducting the previous session very nicely and giving me the opportunity to initiate this panel discussion. May I request Prakash Patwari, please escort the speakers, learned speakers, Sri Sanjeev Bhasin, Sri Sandeep Jain, and Mr. Piyush Patel is already on the dais. Welcome, sir. Thank you. Bagga sir, Bansal sir, am I audible to you? Bilkul sir, you're audible. Thank you. Very good afternoon to all present here, both physically and virtually. And a warm welcome to all in this last session of today's one-day conclave on the theme Startup to Capital Market, Market Wealth Multiplier. This last session is a panel discussion on the topic Capital Market Wealth Multiplier. We have with us panelists Mr. Sanjeev Bhasin, Mr. Piyush Patel, and Mr. Sanjeev Jain, who have joined physically, and Mr. Ajay Bagga and Mr. Varinder Bansal, who have joined virtually. And Mr. Varinder Bansal will be moderating this panel discussion. All of them are very famous personalities with their presence on many TV channels like CNBC, G Business, and many more on a regular basis. And it is honor to get this opportunity to introduce them formally before you. Mr. Sanjeev Bhasin. Mr. Sanjeev Bhasin is the Director of India Infoline Securities Limited and has been with IIFL since May 2015. He has over 3 decades experience in almost all domains of capital markets, which includes merchant banking, investment banking, broking, fund management, arbitrage, derivative, quantitative funds, research, and so on. Bhasin sir, previously he was running the prop book for Deutsche Bank at Hong Kong for 5 years and has worked as a consultant on equity market at the rate NDTV Profit for over 4 years. He is well known for his presence on the coverage of markets on all TV channels, namely CNBC, CNBC Awaaz, G Business, ET Now, DTVI, Bloomberg, Quint. He is a commerce graduate from Sri Ram College and chartered wealth manager. He covers extremely market research, interacts with both the retail customer and corporates. Bhasin ji ke Haseen Share, a very popular program on GTV, is very much awaited by all viewers. Bhasin sir, thank you. Bhasin sir, इतने हसीन शेयर आप कैसे चुनते हैं? Friends, please welcome Mr. Sanjeev Bhasin with a huge round of applause. And I request CA Nitesh More, past chairman of EIRC, please come and honor Mr. Bhasin by presenting bouquet. Thank you, Nitesh. Jain Saab. Sandeep Kumar Jain is the co-founder of TradeShift, a leading commodity, equity, and currency derivatives broker in India. He is a commerce graduate from Mumbai's Mithibai College and MBA Finance from Mumbai's KJ Somaiya, yes. Sandeep ji, with his passion for general knowledge, equities, investment, and economic affairs, brings to the table a rare
combination of being an equity articulate and a knowledge speaker on equities, commodities, and economic issues. He is the member secretary of Rajasthan Exchange Member Association and National Executive Member of Commodities Participants Association of India and a member of the Education and Training Committee of Association of National Exchanges Members of India. He has been regularly featuring on various business channels like CNBC Awaaz, Bloomberg, print media, a participant on exclusive panel on analyst on G Business since the last 17 years. He has won the CNBC Award Best of the Quarter, IPL Positional Maha Mukabla Award Champions of the Year 2013. Now he is a member of the exclusive panel of analysts on G Business. His recommended mid-cap, small-cap picks have given multi-X returns to the viewers, followers and clients. जैन साहब शेयर मार्केट का मंथन करके जो जेम्स निकालते हैं उससे जो हमारे इन्वेस्टर्स है वो मालामाल हो जाते हैं. With these words, friends, welcome Mr. Sandeep Jain, and I request Mr. C.A. Gopal Khetan, please honor Mr. Jain by presenting bouquet. Please come on, Shulbhan. Yes. तो आप क्या देंगे? Thank you. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि भसीन जी की हसीन शेयर या गिरफ्तार लेकर से पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग बड़ाई करने लगे. नहीं तो पहले टीवी वाले को बोलते थे तो सारे बेकार स्टॉक बताते हैं, बट इस बार पहली बार ऐसा फील होता है, मतलब पिछले 1-2 साल 3 साल से, कि जेम्स और लोग हमारे बताए हुए शेयर्स पे काम करके पैसा बनाते. थैंक यू सो मच. नहीं, उसमें ये भी तो हो सकता है ना, हमारे जैसे जो है इंट्रोड्यूसर होंगे जिन्होंने कमाया होगा. मिस्टर अजय बग्गा. Mr. Ajay Bagga is veteran of the Indian financial services since with over 31 years experience in banking, fund management, structured finance. Starting at Citibank in 1990, he has held several roles at global market leaders like Citigroup, Pioneer Funds, General Electric, Fulton Funds of Thamesbank, Deutsche Bank. He was the country head and managing director of Deutsche Bank's private wealth management division and served on its Asia Pacific Executive Committee. Bagga Sahab was the chairman of Financial Planning Standards Board of India, which awards the global CFP certification. He is a regular contributor to electronic and print media with more than 5,000 TV appearances and 100 articles. He stars in the monthly program AB of Global Markets on G Business. Mr. Bagga is a PG DBM equivalent to MBA from the reputed XLRI Jamshedpur and holds a first-class honors degree in political science from the prestigious Hindu College, Delhi University. Friends, please your puts hand together to welcome Mr. Ajay Bagga, who has joined virtually. Mr. Piyush Patel, who is already introduced, so no more introduction. Mr. Virendra Bansal, over 15 years of experience in equity research. Prior to the foundation of Omkara Capital, he was fund manager of AMC and prior to this, corporate editor and AMP. Head of research at CNBC TV 18, he holds a degree in MSc Finance and MBA. Friends, Mr. Bansal has spent in last 15 years
in Mumbai, learning from people across the spectrum, some of whom are his mentors, and applying his strong fundamental skills and hard-nosed number crunching and analytical skills to identify investment ideas. His strength is years of experience in identifying not so fashionable stock ideas. Most of these ideas have had a bedrock of stock fundamentals, superior balance sheets, and boasted of high quality promoters. He has coupled his approach with a strong feedback mechanism, which is effective due to his deep rooted connections with equity market veterans and leaders of corporate India. Friends, Mr. Bansal is the moderator of today's panel discussion. Friends, let us welcome Mr. Bansal with huge of round of applause. Now, I will hand over the proceedings to Mr. Bansal for further discussion, sir. Now it's your show. Thank you. Well, thank you, sir, so much, and thank you, everyone. Saturday evening, तो मजा आएगा सीखने में सबसे. To be honest, I don't want to get this as a boring session. बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे. Economy, global, COVID, वो जो किसी के हाथ में नहीं है, किसी को मालूम चलता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा. So वो टाइम पास की बातें होती है. So I will come straight away to questions जो मुझे भी सीखने हैं, and I think which will be very important for a lot of people. So I have made a set of questions जो मुझे सब जो हमारे पैनलिस्ट है, you know, they are very very famous people, तो मुझे बार बार उनके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है. आपने हसीन वादियां भी देख ली है, आपने you know संजीव जी के सब बातें भी बड़ी सुन ली है. So सर, एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास. So I'm just starting my conversation to learn from all of you. आप स्टॉक कैसे चुनते हो? एक प्रोसेस क्या है आपका? अभी मार्केट गिर चुका है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है रिसर्च करने का? कि आप स्क्रीनर्स लगाते हो, आप देखते हो कि बड़े लोगों के पास कौन से स्टॉक्स हैं, या मतलब मैं बोलूं कि जैसे आज इंडिया में 5000 कंपनी लिस्टेड है. हम बातें बड़ी बड़ी करेंगे, सेक्टर्स की बात करेंगे, ग्लोबल की बात करेंगे, इंडिया स्टोरी करेंगे, 5 ट्रिलियन की बात करेंगे, वो सब बातें हैं. मैं तो 10-15 स्टॉक्स ले सकता ना पोर्टफोलियो में. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? आई विल स्टार्ट विद संजीव जी. वसीम साहब, आप हिंदी में बोलिए सर, हिंदी पंजाबी में मजा आएगा. अच्छा, इंग्लिश कम यूज करना प्लीज. सर, आपकी वैसी आवाज बहुत बुलंद है, वैसे बोलोगे माइक को अपने आप सुन जाएगा. थैंक यू वीरेंद्र एंड थैंक यू ऑल. इट्स अ प्लेजर बीइंग हियर. और पंजाबी में कहते हैं ना वाह वाह, तो वाह वाह का सिंपल चीज है कि वीरेंद्र सी द प्रोडक्ट. मैंने शेयर बाजार जब ज्वाइन किया तो दिल्ली में आउटक्राई होती थी. आउटक्राई माने चिल्लाना पड़ता था. और मैं कॉमर्स का फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट, इंटर क्रिएट किया और मैं स्टॉक मार्केट में पहुंच गया. और वहां पे आपको चिल्ला के भाव पता करना था. तो मैंने एक मेरे जानने वाले थे, उनसे पूछा क्या शेयर लिया जाए. ना हिंदी बोल सकते थे इंग्लिश, वो पंजाबी बोलते थे. तो मैंने बोला कौन सा? तो बोले बेटा पॉन्ड्स का शेयर ले ले. तो उसका रीजन क्या था वीरेंद्र? उन्होंने 15 साल दी जवान ते 78 साल दी बुजुर्ग रोज सवेरे शाम लाएगी. अब आपको पंजाबी समझ आई, बाकियों को नहीं आई. उसका मतलब ये था कि 16 साल की लड़की और 78 साल की बुजुर्ग पॉन्ड्स की क्रीम रोज सुबह शाम लगाएगी. ओके, पॉन्ड्स का भाव 50 रुपए था उस समय, और उन्होंने कहा ये कभी रुक ही नहीं सकता. संजीव सर, आज सॉरी आपको रोकूंगा. मैं इस सेशन को बहुत मजेदार बनाना चाहता हूँ. क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मैं सब बड़े बड़े लोगों से मिलता हूँ ना, तो सब पुरानी कहानियां सुनाते हैं. मैंने वो आरजे सर से मिलता हूँ तो वो सब टाइटन हुआ, लुपिन हुआ, सबको मालूम है. हीरो होंडा, मोतीलाल, सबको पता है. मुझे आप आज बताइए, आज मार्केट गिरा हुआ है, आज अगर आपको शाम को बैठना है स्टॉक ढूंढने के लिए, आज मुझे और कुछ नहीं ढूंढना. मुझे तो ये ढूंढना है कि इंडिया में सबसे बड़ी हस्ती कौन है और वो कहां पैसा लगा रहा है. आई टेल यू अ सिंपल रीजन, बिकॉज मार्केट इज ऑल्सो अबाउट द फ्यूचर. किसने सोचा था कि एलॉन मस्क विल स्मोक वीड ऑन द टीवी बट बिकम $1 ट्रिलियन, एंड व्हाट इज हिज प्रोस्पेक्ट्स फर्दर? तो मेरा आज की डेट में टॉपिक होएगा एक शेयर कॉल्ड SW सोलर. Reliance Energy has made an open offer of 375.
clean energy and green energy is the next future, and I think 395, 34. मैं स्टॉक्स पे मैं बहुत उत्सुक हूं आपसे स्टॉक जानने के लिए, बट मेरा कारण क्या है कि आप एसडब्ल्यू सोलर पे कैसे जाते हो? फॉरगेट अबाउट द नेम्स ऑफ द स्टॉक्स, मैं आपसे 10 स्टॉक्स पूछूंगा, तो उसका सिंपल रीजन है, प्रोसेस क्या है कि आप पहले सेक्टर देखोगे, आप प्रमोटर देखिए, मतलब एक होता है ना कि आपके दिमाग में क्या चलता है जब आप स्टॉक्स चूज करते हो? तो सिंपल चीज है, 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लार्जेस्ट प्लेयर इन एमईपी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लानर मेयर. They were in debt when Shahpurji raised, took some cash that has been returned, or future looks that unki execution book on the book is looking extremely good. So I think that there is enough value for this at least to come back to his pre-IPO time of 750. उसी कारण में एक छोटा सा और लूंगा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आज आपने देखा है PSU banks were always underrated for whatever reason and underperformance. Cost of money clean hai, NPS have reduced, the book has been cleansed, half time price to book at 43, 44, Union Bank is a steal. You have seen the performance of the other PSU large caps like State Bank, Can Bank and Bank of Baroda. I think यहाँ पे risk reward Marinder on a market. मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, जब आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हो या एसडब्ल्यू सोलर की बात करते हो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए मुझे एक फाइनेंशियल सेक्टर खेलना है, उसमें प्राइवेट भी आता है, पब्लिक भी आता है. ये पीयूष साहब पहले इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे थे, और पीएसयू में भी कैनरा है, बॉब है, पीएनबी है, ब्ला ब्ला बहुत है. तो संजीव जी यूनियन बैंक पे कैसे एक स्टॉक कैसे चूज करते हैं? इतने सारे जब ऑप्शंस मेरे पास होते हैं, मैं आपका वो दिमाग का जो प्रोसेस जानना चाहता हूँ. अरे मेरा कारण क्या है कि हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बट अभी एक स्टॉक पिकिंग आपकी प्रोसेस क्या है? क्योंकि आप हमें फिश वो पेड़ उगाना सिखा देंगे तो वो पेड़ उगता रहेगा धीरे धीरे. अरे 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 वीरेंद्र, सारा कुछ आज ही पूछ लोगे तो रहेगा क्या? कुछ मिलेंगे सर, मिलेंगे, एक दिन मिलेंगे, एक जाम जूम पे एक दिन मिलेंगे, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सिखा दीजिए आज. नहीं, so see, value, growth and quality, what you said is underlined by valuation. I'll tell you a simple quote. सब कहते हैं Warren Buffett always picks quality and I was lucky enough to interact with him in 2012 when I was with NDTV. और उन्होंने मेरे को बोला, संजीव, do you know how many years I held on to Coca-Cola? Just as an example. So I took a rough guess, 25 साल, someone said 30. He said 41 years and growing. So, you know, the thing is that Warren Buffett holds stocks for eternity. But I read a book from Charlie Munger, अभी जो उन्होंने comment दिया, he said, no, Warren will buy anything which is cheap, even if the management is imbecile. He will make the management turn. So I think similarly to what the other PSUs have done, Union Bank is poised to do. It is a growth entity, and we can see now cost of money, technology, all look. So इस कारण से I have picked out on Union Bank. Got it. So संदीप सर, पहले तो मुझे ये बताओ, वो खाते क्या हो यार? मतलब कि मुझे महीने में एक या दो मल्टीबैगर भी बहुत बड़ा शब्द हो गया, एक या दो मुश्किल से स्टॉक्स मिलते हैं पूरे महीने में. हाँ संदीप भाई, आप ही के लिए है. आप दिन में एक एक दो मल्टीबैगर्स कैसे निकाल लेते हो? मतलब कि ये क्या खाते क्या हो आप यार? मतलब हमें मालूम चले, हमारे संजीव भाई अभी भी आईडीएफसी बोलते हैं, एटलीस्ट वो वही स्टॉक्स 5-6 स्टॉक्स है जिनके हैं. आप रोज नया कहां से निकाल लेते हो? पर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स है? आप कितना स्टॉक रखते हैं पोर्टफोलियो में? मतलब 300 स्टॉक्स होंगे, 200 स्टॉक्स होंगे, कितने स्टॉक्स होंगे आपके पोर्टफोलियो में? 1200 स्टॉक्स है. 1200 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में. 8000 लिस्टेड कंपनीज है, 1200 स्टॉक को रिसर्च करते हैं, उसमें से 800 स्टॉक्स ऐसे जो रिकमेंडेबल है, जिसमें से जैन साहब के जेम्स में मैंने 400-500, एकदम मैं नंबर्स के साथ बात कर रहा हूं, एकदम दिल से ना. मैंने वो मुझे पता है, बट आपके पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक रखते हो मुझे ये बताओ. मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं रखता मैं, बट मैं अजय बग्गा जी की एक बात के साथ बहुत एग्री करता हूं. बहुत घुमाते हो आप यार, आप सीधा बोलो, आपके 50, 100, 200 कितना स्टॉक्स होता है आपके पास? अजय बग्गा जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली थी. एक दिन हम लोग कई सीए, NIRC, CIRC, ये तीसरा है शायद अजय बग्गा जी के साथ की EIRC में हम लोग हैं, तो बोले कि आप 100 स्टॉक रखिए, 150 स्टॉक रखिए, सब 1-1% रखिए. सो एक वैसा ही अगर हम लोग रेकमेंड भी करते हैं कई बार पोर्टफोलियो, तो वैसा कीजिए. अब हाँ, वो 400 पे रह गया. मैं 400 स्टॉक्स की जो बात करते हैं अपन, 800 स्टॉक्स है, उसमें से 400-500 स्टॉक को फिर हम लोग एक स्क्रीनर से निकाल के रखते हैं. फिर मेरे करीब 15 पैरामीटर्स है फंडामेंटल्स के, जिसको मैं लगाता हूं. फिर 6 पैरामीटर्स है टेक्निकल्स के.
उन सब में से निकाल के मैं स्कोरिंग रखता हूं उसकी, फिर उसके बाद ये स्टॉक निकालते हैं, फिर ये देखते हैं समधी नहीं चुनना, मैं जवाई चुनना है। कई लोग समधी मिरर हो रहा है सर आपका चुनता हूं, वैसे स्टॉक्स को चुन के लाते हैं, बाकी निकल जाता है रोज के रोज। देना एक ही है ना दिन में वरिंदर। So if I understood correctly, sorry, because the voice was broken in between. So around 1% allocation to each stock you keep, around 100, 120, right? नहीं, ये दिस इज वन ऑफ द Is that the स्ट्रैटेजी। correct assumption, sir? या ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें क्या होता है, कई बार आप रिस्की स्टॉक्स भी लेते हैं, बहुत ज्यादा रिस्की स्टॉक भी ले लेते हैं, आजकल के जो नए स्टार्टअप टाइप के स्टॉक्स है उनको भी ले ले तो डर नहीं लगता लेने में, क्योंकि 1% ऑफ द कैपिटल है। और प्लस मैंने देखा कि अगर लेते हैं, मैंने एक बैक टेस्टिंग की थी मेरी एक स्ट्रैटेजी की, अगर लेते और भूल ही जाते और बेचना ही नहीं है कभी भी, और जब जब उस पैरामीटर में वो स्टॉक आ जाए और लेते जाएं आप, 89% की कैगर निकली है वरिंद्र। मतलब दिस इज, मैं उस पे आऊंगा सर, मेरे पास पोर्टफोलियो रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत हैं, बट एटलीस्ट आई गॉट द आंसर फॉर दिस कि आपके पास मतलब आपका स्ट्रेटजी क्या होता है, व्हिच इज अ गुड थिंग व्हाट यू टोल्ड, फिल्ट्रेशन फ्रॉम फंडामेंटल्स देन टेक्निकल्स एंड देन व्हाटएवर 80 100 जो भी स्टॉक्स है। बग्गा साहब, आप सबसे समझदार और सबसे सुंदर भी हो, आपके पास आता हूं मैं सर, आपसे कुछ ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं कि पंजाबी दोस्त हो मेरे आप कैसे स्टॉक्स लेते हो सर? पंजाबियों का पूरा बोलबाला है यहाँ पे। हमेशा रहता है सर। वरिंदर, हम बहुत कम पंजाबी हैं स्टॉक मार्केट में। खैर, मेरे लुधियाना के सेमिनार्स बेस्ट होते थे, चंडीगढ़ एंड लुधियाना सेमिनार्स यूज्ड टू बी द बेस्ट। एंड जब मैं एंटी चाइना बोलता था, मैं ओपनली एंटी चाइना हूँ, और वो इतने इमोशनल हो जाते थे सारे, छोड़ते ही नहीं थे मेरे को एंड तक। तो ओवरऑल सर वो बोलते हैं ना बग्गा साहब, 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, हाँ बिल्कुल गोविंद सिंह नाम पढ़ा बिल्कुल। हूँ, तो कोई बात नहीं, हम सर, कम में तो कोई दिक्कत नहीं है। देश को बचाते तो पंजाबी हैं एंड ऑफ द डे। सब सर साथ में सर, एवरीवन टुगेदर। वेरी पेट। वरिंदर जी, माय स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल, टॉप डाउन है, एंड मेरा मैक्सिमम फोकस मैं देता हूं क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि कितनी भी अच्छी कंपनी हो या कितना भी अच्छा सेक्टर हो या साइकिल आपने ठीक पकड़ ली, बट चोर मैनेजमेंट है तो वो छोड़ेगा नहीं पैसे आपके लिए। माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेचारे की कोई औकात नहीं होती। म्यूचुअल फंड भी हम चलाते थे वरिंदर, आपको तो पता है, बट इंडिया में इंस्टीट्यूशनल एक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है। एक बैंक टेक ओवर कर रहा था, आईसीआईसीआई बैंक केरला में, और हम खड़े थे सारे अपने स्टॉक ये प्रॉक्सी वोट्स लेके, यूनियन वालों ने आके हम सब से हाथ से वो वोटिंग कार्ड्स छीन के फाड़ के फेंक दिए, और वो बैंक कभी भी टेक ओवर नहीं कर सके। हम ये भारत की बात है और कोई एग्री सर, नहीं है, पिछले 10 साल की बात है। तो मैनेजमेंट क्वालिटी वरिंदर, मैं कहूँगा सबसे बग्गा साहब आप वो एक्सेस कैसे करते हो? मतलब कि अगर मैं टॉप की 20 25 50 कंपनीज बोल दो, चलो ठीक है, आप बिल्कुल सही हो कि उनको, क्योंकि हमने 20 25 सालों से देखा हुआ है, बट जब हम छोटे स्टॉक्स में जाते हैं, जो हमारे जेम्स जिनको बोलते हैं, संदीप भाई के जेम्स बोलते हैं, तो हाउ डू यू एसेस द क्वालिटी? मतलब कि मैं बार बार सोचता हूँ कि यार मैं फिल्टरिंग कर लूंगा, स्क्रीनर लगा दूंगा, उसमें पी निकाल दूंगा, आरओसी निकाल दूंगा, ब्ला ब्ला 50 मैं स्क्रीनर चला दूंगा, बट आप नया कंपनी जो होता है या छोटा कंपनी जो होता है या स्मॉल कैप होता है या मल्टीबैगर्स होता है, उसमें आप कैसे एसेस करोगे? बहुत क्रिटिकल है कि मैनेजमेंट पे मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, और वही बैंकिंग मेरा बैकग्राउंड है। तो हम जैसे लोन देते थे, बड़े बड़े क्रोल रिपोर्ट हम करते थे, 800 पेज की रिपोर्ट आती थी किसी भी प्रमोटर के ऊपर बिफोर हम लोन्स देते थे। और इसलिए एनपीए नहीं होते फॉरेन बैंक्स के, क्योंकि हम काफी हद तक उसमें इस तरह का डेप्थ में जाते थे। तो मैं कहूँगा ये छोटे कंपनीज में भी मुश्किल हो जाता है टू गेज, बट ये है कि कोई ना कोई मिल रहा होता है। तो मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत है। मैं एक तो पहले आई विल आस्क कि भाई कोई मिला है या कोई उस प्लांट को देख के आया है, बैकग्राउंड देखता हूं जरूर। सबसे अहम बात मैं कहूंगा वरिंदर ये है कि प्रमोटर की क्वालिटी, और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को साथ लेना चाहता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भसीन साहब ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए पीएसयू के। पीएसयू क्यों पिछड़ गया? पीएसयू क्यों पिछड़ गया? बिकॉज उसका प्रमोटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऑर्फन हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए मुझे ज्यादा पीएसयू पसंद नहीं आते,
वो ज्यादा सिचुएशनल, स्पेशल सिचुएशन कोई पीएसयू है तो आप पकड़ लीजिए, अदरवाइज आप डिविडेंड यील्ड के लिए रखते हैं उसमें रख सकते हैं कि भाई मेरा फिक्स इनकम की जगह डिविडेंड यील्ड वाले को पकड़ता हूँ और कैपिटल आ गया गेन तो ठीक है, बाकी तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट एज प्रमोटर तो मतलब हर आदमी हाथ धो रहा होता है। तो ये बहुत जरूरी है स्मॉल कंपनीज के लिए। आई एम सेइंग आपका स्क्रीनर में 30 पॉइंट हो, 40 पॉइंट हो, कैश फ्लो हम देखते हैं जरूर, काफी और तरह की चीजें देखते हैं, सेक्टर कितना अच्छा है, तो टॉप डाउन इकोनॉमी कहाँ पर है, सेक्टर कहाँ पर है, इसमें कितना कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, पोर्टर का लगाते हैं पूरा फ्रेमवर्क और उसके बाद देखते हैं। बट सबसे अहम मैं कहूंगा कि प्रमोटर कितना very important माइनॉरिटी point, है। very तो देखिए 10-15% तो सब खाते हैं। मेरे को याद है 1999 में हम गए थे, हमारी सबसे बड़ी पोजीशन थी एक टेक्नोलॉजी कंपनी में और उसको हम यही समझा रहे थे, यार तू अगर छोड़ देगा ना अपने कंपनी में पैसा, जितना तेरा प्राइस अर्निंग है इतना तुझे जबरदस्त रिटर्न मिलेगा, वो तू चुरा के क्या मिलेगा तेरे को। हम जाते थे वरिंदर, हम फंड चला रहे होते थे, उस कंपनी में हमारे 100-200 करोड़ लगे हुए थे, हम इकोनॉमी में बैठे होते थे और ये प्रमोटर और सब बिजनेस क्लास में घूम रहे होते थे और साथ में हमारे आसिम प्रेम जी और नारायण मूर्ति बैठे होते थे। वो कंपनियां डूब गई, आप देखें नारायण मूर्ति और आसिम प्रेम जी की कंपनियां कहाँ हैं। मतलब आसिम नारायण मूर्ति जी फ्रंट रो भी नहीं मिलती थी उनको, मैं जाके बोलता था सर आप आगे आ जाओ, मेरी फ्रंट रो है उसमें लेग स्पेस ज्यादा है, एंड बोले ओ थैंक यू वेरी मच, एंड चुपचाप बैठ जाते थे। नंदन नीलन के नहीं इतनी बारी इकोनॉमी क्लास में मिल जाते थे। ये मैनेजमेंट क्वालिटी वरिंदर सबसे। अजय सर, वो क्या है ना, आपकी बातें आई रियली रिस्पेक्ट द पॉइंट व्हाट यू सेड एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बट द बिगर चैलेंज समटाइम्स जो मैं भी फेस करता हूं कि आजकल ना सब सीख गए हैं, प्रमोटर्स बहुत समझदार हो गए हैं। पहले प्रमोटर्स को इतना कुछ पता नहीं था, अभी प्रमोटर्स को हर चीज मालूम है सर, किस तरीके से क्या करते हैं। वो जमाना थोड़ा अलग था जो आप आईटी मेजर्स की बात कर रहे हैं, बट आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट। नाउ आई विल कम टू भसीन साहब अगेन, तो हमने ये पहला क्वेश्चन पूछा कि आप किस तरीके से स्टॉक्स को लेते हो, प्रोसेस क्या है। भसीन साहब का सीधा है 2 स्टॉक्स बोले, ठीक है। भसीन साहब, आप एग्जिट कैसे करते हो स्टॉक को? मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक ले लिया, स्टॉक चला नहीं है, और मालूम चले कि यार आपके लेते लेते एसडब्ल्यू सोलर नहीं चल रहा बट बोरोसिल हमारा 5 गुना हो गया। तो एक होता है ना कि एग्जिट स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में क्या होती है? करेक्ट। सो 2 चीजें हैं, एक व्हाट बिजनेस आर यू बाइंग एंड सेकेंडली व्हाट कॉन्फिडेंस यू हैव इन द नंबर्स। नंबर्स इज आपको पता है क्वार्टरली अर्निंग्स एंड सो ऑन, and thirdly you have to be prepared ke what sort of capital you are ready to commit. So my strategy when I initially started was, Varinder, where I expected say 30 to 40%, I generally took out my capital because capital is restricted. When I got my return, I took out my capital but let the profit stay invested. So agar 40% मेरे को टिका रिटर्न मिल गया, जो 40% था वो स्टॉक में ही बने रह गया, and the rest I utilized in whatever the wherever the next. So expectation of return is correlated to what your expectation is in growth in life is, and that's why portfolios, in hindsight everyone will say कि you should have just let your winners run. वो कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल, but originally and in hindsight you realize कि brands which have grown manifold, वो आपको दिखता है कि how a Nestle or a Lever or a ITC has potential to double, triple, 4 times. My simple strategy when I initially started at a young age was create the profit and reutilize that, but let the profit stay invested in stock. Got it. आप कोई एग्जांपल लीजिए भसीन साहब, आपके तो बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत आपने जमाना देखा है, कोई ऐसा स्टॉक जो आप पकड़ के बैठे साल 2 साल 3 साल नहीं चला, फिर मालूम चला एक ही महीने में सब पूरा काम हो गया। आई वांट टू आल्सो नो द चैलेंजेस व्हाट यू फेस्ड एज एन इन्वेस्टर, बिकॉज़ बड़ा बात अगेन कि इंडिया स्टोरी अच्छा है, बट ये सब चीजों से हम सीखेंगे आपसे। हाँ, तो बहुत अच्छी बात कही। देखो, मैं जब 89 की बात कहता हूँ, मेरे अंकल ही यूज्ड टू डू फैब्रिकेशन फॉर टाटा स्टील, फॉर स्टील इंडस्ट्री। तो उन्होंने एक शेयर सजेस्ट किया जब लिस्टेड हुआ था टाटा हनीवेल, तो 51 रुपए का भाव था और मैंने हनीवेल में
1000 शेयर लिए, उस समय 51,000 भी काफी था 89 में। उसके बाद मुझे राइट्स आया 5:3 और मेरे पे 1600 शेयर थे, और वो मैंने 98 में बेच के एक मकान लिया, या a flat I purchased because that stock had gone to 750. अब उसमें मेरे 75% स्टॉक निकल गया, लेकिन आज भी मेरे पे 275 शेयर हनीवेल के हैं, और ताज्जुब की बात है कि अब हनीवेल फ्यूचर्स में आ गया है और उसका भाव भी आज लेकिन 50,000 है। तो ये एक हाइंडसाइट है कि जब मुझे कोई चीज चाहिए थी तो मेरे को स्टॉक तो लिक्विड होता है, वही बेच सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक मिसनोमर है कि आप खाना पीना मत खाओ लेकिन शेयर रख लो। ये सब हाइंडसाइट में है। जब आपको शेयर के लिए पैसा चाहिए या बच्चे की पढ़ाई करनी है, यू हैव टू सेल। सो आई एग्री, देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू गॉट स्टक ऑन अ रॉन्ग विकेट। एक और ऐसा ही उदाहरण छोटा सा देता हूं कि मेरे को अतुल का शेयर किसी ने दिलाया जो अहमदाबाद से थे, और वो 25 रुपए का भाव 25 साल रहा, 15 साल रहा, अतुल का भाव चलता ही नहीं था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था कि क्या, लेकिन उसमें मेरे को कन्विक्शन क्या थी कि जो बिजनेस का मॉडल है और प्रमोटर है, दे वर वेरी वेरी क्लीन, बहुत गुजराती, बहुत ही बढ़िया। तो वो आज वही अतुल अब क्या मल्टी बैगर हो गया, एंड आई स्टिल हैपन टू रिटेन certain part of those stock. I agree that they may have been exited, but sometimes your necessities are such, Virinder, कि you have to liquidate and cash becomes the key imponderable. तो संजीव सर, तो आपका स्ट्रेटेजी क्या रहता है फिर? आप एलोकेशन कम ही रखते होंगे जब आप शुरू करते हो तो? ये ओरिजिनली गलती थी। ये बाद में हम सीखे कि जब आप में अब कन्विक्शन है, अब मैं दो राय नहीं करता, क्योंकि 50 साल की उम्र में बहुत मेच्योरिटी आती है और गलतियों से सीखते हैं। अब अगर मैंने कहा यूनियन बैंक या किसी को रेकमेंड, तो आई विल गो होल हॉग, आई विल नॉट स्टॉप, बिकॉज आई हैव कन्विक्शन, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स, because markets teach me every day. All the mistakes I make, I learn from them. So when you say whole hog, sir, थोड़ा हिंदी में इसको ट्रांसलेट कीजिए हमारे लिए कि 5% एलोकेशन होता है, 10% होता है, 50% होता है, इसका मतलब क्या होता है? नहीं, depending on the flows, we will start to allocate at least 10% of capital where we have conviction, and we are looking for reasonably good sound returns, because see, ये एक अनहोनी सर्कमस्टांसेस। 18 महीने में जो कैपिटल बना है वो 5 साल में नहीं बना। और ये जो मिड कैप का बूम है, या जो so remember, froth will always come at a top, not at a bottom, and some of it will be generated by fund managers and so on. Being sane here is a relative term, but being invested is a bigger term. So the risk of capital and the risk of not being fully invested is bigger than the risk of missing out. अच्छा सर, सॉरी, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। आप माइक रखो सर, आपसे बात करने में बहुत मजा आता है मुझे, ठीक है? तो आपने हनीवेल का नाम लिया, अतुल का नाम लिया, कुछ इंसिडेंट्स भी हुआ होगा ना सर? आप पकड़े बैठे 10 साल 5 साल, बट स्टॉक 70, 80, 90% नीचे हो गया। बाकी ऐसा भी तो हम सबके साथ हुआ है। सो कुछ ऐसा भी, बाकी उसमें भी कोई लेसन सीखा होगा ना आपने? हाँ बिल्कुल, बहुत बारी ऐसा हुआ है, उसके लिए अनगिनत है। तो मैं मैं आपको साफ बात बताऊं, I respect the market more than anything, and I have learned from my mistakes, not from my victories. Victories will be few, and I don't tom about that, क्योंकि मैं जानता हूं शेयर बाजार का ग्रीड एंड फियर का पैरेलल जो है वो हम सब में है। वो कोई ऑपरेटर नहीं, कोई एफआई नहीं तो मॉर्गन स्टैनली आ जाके एक तरफ बोल देगा 80,000 का इंडेक्स, उसका हेज फंड बोल देगा 50,000 का इंडेक्स। तो मैंने कहा दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, लेकिन ये 7-headed snakes है। एक सर कुछ बोलेगा, दूसरा सर कुछ बोलेगा। आप कहाँ हो? तो मैंने कहा दोनों की तात्पर्य ले लो कि 65,000 पहले आएगा, बाद में कुछ और होएगा। So use your own dialect, see the businesses, see what you can buy. अभी वीरेंद्र पटेल साहब ने कहा, पीयूष ने, कि कपड़ों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जब मैं डॉयचे बैंक में था तो मेरे बॉस को प्रमोटर आके मिला 2007 में, और उसने 750 रुपए में हमको दिया पेज इंडस्ट्रीज। उसका भाव 1.5 साल में 4 गुना हो गया। एज अ हेज फंड हमने कहा हमारी लॉटरी निकल गई, करेक्ट? लेकिन मैं कह रहा हूं पेज इंडस्ट्री का शेयर 11,500 से 40,000 भी तो 18 महीने में हुआ है, और आप कैसे कह सकते हो कि कच्चे बनियान नहीं बिक रहे? इसका मतलब 18 महीने से जो लोग अपने घर में सिर्फ ऊपर सूट पहनते हैं, नीचे कुछ भी और पहन रहे हैं, उनको भी कपड़े की डिमांड है।
तो कपड़ा, यार्न, कॉटन आर गोइंग टू गो प्लेसेस, ये लिख के ले लो आप। इस कारण संजीव भाई आपने मेरा आंसर ही नहीं दिया अभी तक। मैं आपको बोला कौन सा स्टॉक था और क्या लेसन था जिसमें आप खड़े रहे और स्टॉक 70-80% नीचे था। वो बहुत ज्यादा है। एक आधा स्टॉक बताओ ना सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है कि you were focused on what? You were focused on management, you were focused on business. Where did you go wrong and why did you go wrong? I got stuck in some of the metals at very high proxy prices. Some of them I could retain, but I always imagined that Tata Steel, despite the debt and the overhang, will come back because it's the lowest cost steel producer. But I have seen 400 rupee Tata Steel come to double digits. And that was a lesson in the learning that commodities are always priced at price multiples. When they are very expensive, buy them and sell them when they are very cheap. So now, similar to the new earnings, when you had 1400, Tata Steel is trading at 7 times, but at 400, it was trading at 40 times. So that was a lesson to be learned. Commodities are cyclical and you should always respect the price earning when you enter and exit. No, very important lesson, sir. Thank you so much. संदीप भाई, आपके पास तो 100-200 स्टॉक्स हैं। आप पहले तो आपका होल्डिंग पीरियड कितना होता है, मुझे ये जानना आपसे। मतलब कि नॉर्मली सी माय पर्सनल व्यू इज ना, जो मैं खुद एक्सरसाइज करता हूँ और ओमकारा में हम एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग 15-20 ज्यादा से 100 स्टॉक्स लेते नहीं है। और फिर हमें वही होता है कि हमारा पैसा तब बनेगा जब हम एलोकेशन अच्छी रखेंगे और उस स्टॉक पे एलोकेशन अच्छी रखेंगे जहां पे मार्केट बहुत बढ़ रहा है और वो कंपनी उस मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा। So when it comes to you or your style of investing, I'll say that, how do you कि एक होता है ना कि जब एलोकेशन 1% होगी तो उसमें शायद चैलेंज आए कि कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, या कौन से घोड़े को राइड करते रहने का है। सो वो सारी चीजें आप कैसे मैन्यूवर करते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट इसकी मैंने बहुत अलग अलग तरीके से बैक टेस्टिंग की हुई थी जब मैं इस स्ट्रेटेजी पे 2015-16 में ये इवॉल्व हुई थी। इनफैक्ट देखिए, कोई भी चीज इवॉल्व होने में समय लगता है, कर तो रहे हैं बहुत सालों से, मगर 2015-16 में कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि ये स्ट्रेटेजी है जो काम करेगी। और इसको मैंने फिर बैक टेस्टिंग की 5-6 तरीके से, कि अगर मैं कोई स्टॉक को लूं और मैं 30% ऊपर जाते ही निकल जाऊं, मेरा कोई पैरामीटर है कि मैं 200 डेमा, 20 डेमा, फंडामेंटल्स के तो 15 पैरामीटर है ही है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ये शायद वरिंदर भी बहुत अच्छे से इनका प्रेजेंटेशन मैंने देखा हुआ 1.5 घंटे का आपका विवेक बजाज के साथ जो प्रेजेंटेशन था वरिंदर, इट वॉज एक्सीलेंट। उससे भी मेरे को बहुत लर्निंग मिली थी, आई मस्ट एडमिट दैट इन द ऑडियंस। तो हाँ, सो इनफैक्ट मेरा भी कुछ वैसा ही पैरामीटर्स थे। फिर मैंने ये देखा कि 30% पे निकलना, फिर वो 20 डेमा से जैसे ही नीचे आ रहा है, अगर 20 डेमा 200 डेमा को नीचे आ रहा है तो हम लोग एग्जिट भी कर रहे थे। तो फिर मैंने देखा कि इससे प्रॉफिट्स कम हो रहे थे। मतलब जहां अपन सोचते कि 30% पे निकले, 10% का स्टॉप लॉस लगाएं, या वो होल्ड करने में समय लगता है, और यही चीज अगर आप कंटिन्यूअसली होल्ड करते हो स्टॉक्स को और बिना देखे, मतलब आंख मीच के, उसमें से हो सकता है कि 10 स्टॉक हो सकता है कि वो 8 माइल्स टेक्नोलॉजी जैसे भी हो, कि जो एक बार 800-8,000 रुपए तक भी गया और फिर वापस से खत्म भी हो गया। और वैसे कई लोग उसके इन्वेस्टर्स थे जो लोगों ने बहुत बड़ी वेल्थ को भी लूज किया। तो फिर भी मैं बोलता हूं कि वैसे 8 माइल जैसे कोई 3-4 स्टॉक और निकल जाएंगे जो 8 माइल से ज्यादा रिटर्न देने वाले निकलते हैं। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी तो यह है कि मैं भी वो करता नहीं हूं एक्सरसाइज, सिर्फ बोलना अलग बात होती है और करना अलग बात होती है। एग्जीक्यूशन इज वेरी टफ इन मार्केट्स। जो बसीन साहब ने बहुत अच्छा बोला कि बोलना अलग बात होती है, और आप जब स्टॉक का भाव जाता है ऊपर और उससे जब नीचे आता है तो 10-15% में ही लोगों को टेंशन और हाथ पैर फूलने लग जाते हैं। अब HDFC बैंक की देख लीजिए, IGST देख लीजिए। तो यही था कि अगर आप उस स्टॉक को लेते और भूल जाते हैं और अगर नहीं बेचते हैं, बिलीव मी, उसमें से इतने बड़े बड़े मल्टीबैगर्स निकलेंगे। आई विल कंप्लीट वरिंदर, मतलब मैं इस चीज को एक्चुअली मैं इसके ऊपर बहुत काम कर रहा हूं, इसलिए मैं एकदम मतलब, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपने अभी बसीन साहब से जो पूछा एग्जिट स्ट्रेटेजी, ये क्वेश्चन मैंने राकेश झुंझुनवाला जी को पूछा नवंबर 10 तारीख 2018 के दिन, जब वो बोर्ड में थे, मैं MCX की मीटिंग में था, 1-to-1 मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। फिर मैंने विजय केडिया जी को पूछा, वो हमारे एनमी में आए थे, तब पूछा मैंने मार्क मोबियस को पूछा MCX की मीटिंग में एग्जिट स्ट्रेटेजी। दिस इज वन क्वेश्चन आई आस्क टू ईच एंड एवरी स्टॉलवर्ट। हो सकता है मैं बसीन साहब को भी पूछूं, हो सकता है मैं वरिंदर बंसल को भी पूछूं, अजय बग्गा जी को भी पूछूं। तो ये इतना इजी नहीं है, इसका आंसर इतनी इजीली नहीं खत्म कर सकते हैं। बट यस,
बेस्ट स्ट्रैटेजी मुझे लगती है, जो और भी मैंने कई लोगों से एक्सरसाइज किया, समझा। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो स्टॉक में अपना जो मूलधन होते हैं वो निकाल लेते हैं और प्रॉफिट को राइड करते रहते हैं और प्रॉफिट को इन्वेस्टेड रखते हैं। एक स्ट्रैटेजी वो है। कुछ लोग है, अब मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें मैंने टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स, दो पैरामीटर्स से कैसे एग्जिट ली जाती है वो भी देखा मैंने। तो फंडामेंटल्स में फिर हमने 5-6 स्टॉप लॉसेस लगाए कि भाई क्वार्टरली रिजल्ट्स में कोई चेंज आए, नेक्स्ट जनरेशन आई और वो काम नहीं कर रही है ठीक से, वो चेंज आए, बहुत सारे, वी कैन कीप ऑन गोइंग ऑन इट। बट जनरली जो मैं जैन साहब के जेम्स देता हूं उसमें मेरा टारगेट रहता है कि लोगों को पैसा बने और 30% 40% का रिटर्न आए, डाउनसाइड नहीं हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस स्टॉक में डाउनसाइड नहीं हो, वो कंसोलिडेटेड हो चार्ट्स पे, और फंडामेंटली बहुत महंगा नहीं हो। आप ये देखोगे कि मैं कभी भी 100 के पी मल्टीपल वाला स्टॉक, 80 का पी मल्टीपल वाला स्टॉक मुझे जो समझ में नहीं आता मैं नहीं देता हूं। मैं देसी भाई, मैं आपको मेरा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ठीक है ना? मगर आई अंडरस्टैंड ऑल जो आप बोल रहे हो। आपका होल्डिंग पीरियड कितना है? सॉरी, जनरली आपका होल्डिंग पीरियड कितना होता है किसी भी स्टॉक का? लकीली कई स्टॉक तो 2 दिन में टारगेट अचीव कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपका होल्डिंग पीरियड नॉर्मली कितना होता है? क्योंकि वो तो अभी क्या है ना, जब तेजी में सबका चलता है सर, तो मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ आपका होल्डिंग पीरियड 6 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, साल का होता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट यू स्पीक ऑन टीवी, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट यू आर एज एन इन्वेस्टर फॉर योरसेल्फ, जिससे हम सीखेंगे आपसे। आपके 100 स्टॉक्स हैं, 100 स्टॉक्स में नॉर्मली आपके क्या 10 स्टॉक्स हैं जिनका होल्डिंग पीरियड 5 साल है कि नहीं है, या 3 साल है, या 1 साल है? It's a very good question again, a very good way of perspective of asking the question. कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको बेचना ही नहीं है, कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता है कि ठीक है 30% 40% आ जाए और वो सिक्लिकलिटी के साथ ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा जब ये बड़े इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड होते हैं कोई स्टॉक में, आई विल नॉट नेम देम एंड जस्ट एक फोरम में बोल रहा हूं, ये लोग एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करते रहते हैं बहुत दिन तक। पता नहीं, एक वो सपोर्ट पे आता है 200 डेमा पे, वहां पे वो खरीदेंगे, फिर वो अपने रेजिस्टेंस पे बेचते हैं, फिर वो 3-4 बार करके ऐसे अपने पैसे बनाते हैं ट्रेडिंग से, फिर उसकी लंबी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ऐसा कई स्टॉक्स में हुआ है, मैं कोई भी नाम नहीं लेना चाहता, बट एनीवेज जनरली जो मेरा पर्सपेक्टिव रहता है वो कुछ स्टॉक्स तो ऐसे रहेंगे जो 8-10% स्टॉक जिनको हम हिलाएंगे नहीं। फिर उसमें भी ऐसा रहता है कि आप अगर आप फैमिली अकाउंट्स होते हैं तो आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो रखिए और एक उस ट्रेडिंग में से जो पैसा कमाते हैं आप फैमिली मेंबर्स के अकाउंट में इंडिविजुअल में डाल दीजिए, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनानी है, जहां पे टैक्स बिना आपकी कैपिटल बनती रहे। और एक अकाउंट है जो बिजनेस अकाउंट होता है, जो एचयूएफ होता है जनरली, जिस हम लोग जनरली रेकमेंड करते हैं, एकदम में सीए लोग हैं तो सीए की भाषा में बात करूंगा, मतलब एचयूएफ अकाउंट जो होते हैं उसमें दबा के ट्रेडिंग कीजिए और एफएनओ कीजिए, क्योंकि एचयूएफ का होम लोन वाला आपसे कभी भी बैलेंस शीट नहीं मांगता। अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट में ज्यादा सट्टा मारेंगे तो आपकी होम लोन में आपको होम लोन नहीं, ये बात उसमें आएंगे हम। मेरे ख्याल में अजय सर को जाना है, तो मैं अजय सर से पूछता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है ना? अजय जी, आपका एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होता है? मेरा बाय एंड होल्ड है वरिंदर, और इट हैज वर्कड फॉर मी। सो एंड गलतियां मैंने ज्यादा की हैं, जैसे बसीन साहब भी कह रहे थे, आई थिंक ऑल ऑफ अस, बट वो 4-5 स्टॉक होते हैं। और मेरा क्या है, ये एक रिसर्च है बहुत पुरानी, 1926 onwards they have been researching, and University of Arizona की research है stocks को। 4% of stocks give the market returns, 4%। और आज के दिन में अब सब कहते हैं सेमिनार्स में, जी मैंने Amazon खरीदा $10 पे 2000 में, मैंने ट्विटर खरीदा, मैंने ये कहा। लोग कहते हैं आज क्या खरीदना है, वो कोई नहीं बता सकता। और मैं यही कहूंगा कि 4% क्योंकि देता है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो नॉन बफेट हैं हम सब में, आप सब तो फंड मैनेजर्स हैं, यू आर एबल टू पिक स्टॉक्स, मैं नहीं हूं। मैं सीईओ होता था फंड का, तो मैं रिसोर्स एलोकेटर हूं और रिस्क मैनेजर फर्स्ट हूं, इसलिए मैं डाइवर्सिफाइड रखता हूं। बट मेरी लक चल गई लाइफ में, हमें सिटी बैंक में काम करता था, सिबिल के शेयर्स मिले जो आज के दिन में ऑरेकल है। मेरा होल्डिंग है 8,000 रुपए का, जिसपे 23 लाख का डिविडेंड आता है मुझे, और मैंने जिंदगी भर खरीद के रखा है। तो वो एक स्टॉक चल गया। ऐसे स्टॉक भी थे जिसमें हजारों रुपए या लाखों रुपए डाले जो आज जीरो हो गया, एंड वो कंपनियां ही भाग गई, वो भी बहुत है। बट मैं कहूंगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होल्ड फॉर एवर विल रियली वर्क फॉर द रिटेल कस्टमर्स, वो बहुत स्ट्रांगली वर्क करता है। हमें लोगों को कहना, देखिए अगर वरिंदर को पैसा दे रहा है कोई, वरिंदर स्ट्रैटेजी करेंगे, 10% रखेंगे, बसीन साहब रखेंगे, सॉलिड यूनियन बैंक खरीदेंगे, वो अच्छा है। अगर मुझे खुद मैनेज करना है तो मुझे ऐसा यूज करना है कि वो रिस्क इतना ना बढ़े कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो
बिगड़ जाए। तो जब टैक्स फ्री बॉन्ड्स आए थे वरिंदर, कुछ साल पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स थे, 8.9 8.95 वगैरह मिल रहा था पोस्ट टैक्स फ्री बॉन्ड्स में। मैंने इतना डाल लिया कि नेक्स्ट 20 साल के लिए जो मेरी एक्सपेंस आए पोस्ट इन्फ्लेशन 5-7% इन्फ्लेशन लगा के उतना डाल लिया कि साल का वो आ जाता है। सो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आई गेट माय टैक्स फ्री बॉन्ड का वो आने वाला है, वो विजिबिलिटी आ जाती है, तो इसलिए मेरे को पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता। बग्गा साहब, आप हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, आप बहुत सेटिस्फाइड आदमी हो, और इसलिए आपका कहना, आपका इनहेरेंटली यू आर अ सॉफ्ट सोबर गाय, यू नो, सो आपका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है उस तरीके से है, और ये बहुत कम लोगों में ऐसा होता है सर, जो अंदर से शांत होते हैं ना, उनका ही नेचर ऐसा होता है। सो आई ऑलवेज थिंक दैट जैसा आदमी होता है वैसा उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, और जैसे आप हो, बहुत कम लोग हैं जिनका शांत स्वभाव है। बाकी आप एग्रेशन देखिए हमारे संदीप भाई का, यू नो, वसीम साहब का, मेरा तो हमारा एग्रेशन ही अलग लेवल का थोड़ा सा। बट सर आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने, अगेन प्लीज ये मत बोलना यार वीरेंद्र बहुत किया है मेरी लाइफ में, आपने बोला कि आपने गलतियां भी बहुत की। आई वॉन्ट टू नो द स्टॉक जो आज भी आपको याद कराता है कि बेटा तू मार्केट में आया था, देख मैंने सबसे बड़ा लेसन सिखाया तुझे। कौन सा स्टॉक था वो, और आप क्या लेसन सीखे उससे? आई वांट टू नो कि वो क्या था, कैसे आपने चूज किया, किसी के कहने पे लिया, क्या किया उसमें, व्हाट वाज द लेसन? सर वरिंदर क्या होता था, जब पहले ना इंफॉर्मेशन इतनी नहीं होती थी, बहुत मुश्किल था गेटिंग इंफॉर्मेशन, और यू नो बैंक्स के साथ हर जगह छोटे छोटे शहरों में काम किया, तो बहुत यू नो प्रॉब्लम्स रहती थी। इवन गेटिंग द शेयर्स ट्रांसफर्ड, मैं ये शेयर फाइनेंस का एक पोर्टफोलियो चलाता था, उस टाइम पे बिगेस्ट पोर्टफोलियो था इंडिया में, और वो उसमें जस्ट गेटिंग दो शेयर्स ट्रांसफर्ड टू योर नेम, लोग कुरियर में से निकाल लेते थे, कुछ कुछ करते थे, तो ऐसे बहुत किस्से हैं। बट ओवरऑल क्या था कि वेव्स आती थी मार्केट में। अब जैसे हर्षद की वेव आई, हम सब सोचते थे यार मैं ही स्टॉक पिकर हूँ, और देखो इतने अच्छे पैसे मिल रहे हैं, माजदा में घुसे, हर जगह लेके बैठे थे, और वो ओवरनाइट जब गिरा तो कहीं जाने का मौका नहीं मिला। एक बहुत बड़ा लेसन था, मेरे एक फ्रेंड थे आईआईटी से थे, और वो कर रहे थे ट्रेडिंग, और उन्होंने रिलेटिव्स का भी पैसा लगाना शुरू किया, और जब गिरा तो वो रिलेटिव्स घर पहुंच गए, उनके फादर रिटायर्ड प्रिंसिपल थे, और फादर ने फिर अपने प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल के रिलेटिव्स को दिए, और उसको कहा भाई आगे से रिलेटिव्स को नहीं बोलना। तो मेरे रिलेटिव्स अब जब भी पूछते हैं कहाँ डालना, मैं कहता हूँ SBI फिक्स्ड डिपॉजिट, क्योंकि मेरा दोस्त जो था हरी, उसके यू नो उसके एक्सपीरियंस से मैंने सीख लिया कि रिलेटिव्स को कभी मत दो टिप्स के ऊपर तो काम करना ही नहीं है। ये धीरे धीरे आया वरिंदर, ऐसे अक्ल नहीं आई जल्दी। 94 में सब जगह लगाया, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर, वो ये हायर परचेज कंपनियां बड़ी चल रही थी, सब कंपनियों ने खोल दिया था अपना फाइनेंस का। 2000 में जिस तरह से IT चला और फंड चलाते थे हम, टेक्नोलॉजी फंड महीने दर महीने डबल हो रहे थे, और बहुत संकेत आ रहे थे कि खत्म होने वाला है मार्केट, बट हमें लगा और 2 साल निकल जाएगा। तो एट द टॉप भी बहुत पैसा लगाया, तो वही अक्ल आती है बशर को ठोकरें खाने के बाद। तो वही आज आप मिल रहे हो 32 साल के बाद, तो थोड़ी अक्ल आ गई है। बट वसीम साहब से बिल्कुल मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, बिकॉज 90 में ना वरिंदर, जब मेरी पहली सैलरी आई तो मैं बहनों के लिए गिफ्ट खरीदने जा रहा था, तो फादर ने बोला भाई तू मेरे से पैसे ले ले गिफ्ट के, बट तू शेयर खरीद। तो मुझे शेयर भी नहीं पता था इतना, मैं बोला कौन सा खरीदूं जी? मैं बोला पॉन्ड्स ले ले। और वो पॉन्ड्स इतना बड़ा वरिंदर, क्योंकि लीवर्स बन गया जाके, तो मेरी और वसीम साहब की देखो ओरिजिन भी सिमिलर हो गई बिल्कुल। बट मेरे फादर ने बोला था, पहली तनख्वाह उन्होंने पॉन्ड्स में डलवा दी थी, और दैट वाज माय फर्स्ट। आई एम नॉट फ्रॉम अ शेयर ट्रेडिंग फैमिली, मेरे ज्यादा फैमिली आर्मी में है और पुलिस में है, 2 डायरेक्टर जनरल पुलिस हैं मेरे रिटायर्ड अंकल्स, और सब यू नो वर्ल्ड वॉर 1 से सब आर्मी में ही है हमारे 5 जनरेशंस। बढ़िया सर, हमें भी कोई पॉइंट्स मिल जाए, ठीक है ना, मजा आ जाएगा। कहीं से मिल जाए, आपसे मिल जाए, संजीव से मिल जाए, या संदीप भाई से मिल जाए, तो यू नो हमारा भी बहुत सिमिलर मानना है सर कि गलतियां कम करोगे तो पैसा अपने आप बन जाएगा। हम 95% या 96% रिजेक्शन ही होता है हमारा, बट आपसे सीख के ये चीज अच्छी लगी। वसीम साहब, आप बता सकते हो कि आपको
किस स्टॉक ने सबसे ज्यादा लेसन सिखाया स्टॉक मार्केट में और कैसे सिखाया? और ये मत बोलना कि प्लीज यार बहुत स्टॉक्स है, भाई कहीं ना कहीं तो गलत जाते हैं ना हम, कि क्या मैनेजमेंट को गलत कर लिया, उस पर ज्यादा दिल लगा लिया, बैलेंस शीट में ये चीज देखा नहीं, जल्दबाजी कर ली, कुछ ऐसा कुछ जो होता है ना कि हाँ भी हमने इग्नोर ही कर दिया वो चीज। So I can say that, and I hold the stock of JP. और even though we rode it और काफी उसमें कमाया भी था, but in the end the baby was left in the bathtub because you realize that even though the businesses were very good, Verinder, leverage is a bad word. सही है। आज भी I own that share of JP, but in hindsight you realized that leverage was good at one certain time. When जब आप अपने पैरों से ज्यादा चदर फंसाओगे तो कंपनी को भी और आपको भी leverage will hurt you. So तो why were you not able to get out? So emotional. The biggest problem is sell your winners but keep your losers. This was in much earlier years. I agree. As an investment, I still think JP is worth 40 rupees. I can give you a disclosure on what the reasons are. But patience is tested when stocks have no buyers. और वो एक learning lesson था कि emotions are the biggest killer. Hence, greed and fear is not external, it is within us. If we can learn to hold our winners and sell our losers, the faster we realize that, the faster we'll grow. That's the moral of the story, Virendra. I totally agree. Bagga sir, do you think that meeting managements add value while we are investing? Meeting managements, yeah, definitely. It adds a lot of value, but access की बात हो जाती है, Varinder. In a big brand, you would get access very easily. When you're on your own, it becomes a little difficult. तो जब fund में होते थे तो सारे broker लगे रहते थे लाइनों में, और इनके जब equity days होते थे, you would end up meeting 40 managements one-on-one. बहुत जबरदस्त learning होता है. But अब ये secondary है, और दूसरा network से. So there are a lot of young friends of mine who are mid cap and small cap mavens, and I count you in that. I count you also in that. So I follow you very closely whenever you are on TV and on social media, because आपके जो research आती है बहुत अच्छा है. Jain साहब and I collaborate a lot. So we share information. You're just a phone call away. For 6 degrees of separation ना in the stock market वो एक degree हो जाता है, because you know somebody who knows this guy very deeply. तो 1 degree में आप पहुंच जाते हो कि कौन चोर है कौन अच्छा है. जैसे बसीत साहब ने बोला एक गुजराती कंपनी, ऐसे बड़ी कंपनियों को मिले हुए हैं, and most of them are one phone call away, even though you're not a brand today, you're a self brand. And बाकी दोस्त होते हैं जो who have the passion. जैसे ये API chemical शुरू हो रहा था, there were 3-4 very good guys who actually go and meet managements and put out their reports. So I ask you this question because sometimes I feel that managements को मिलने के बाद you get very biased, and biasness is not good when you are investing. I don't know, Basil साहब आपका क्या view है इस पे? Very, very well put. Because the management may not give you the full picture. The credence is your bias, which you rightly said. So, कौन सा ऐसा management है which will sound, pessimistic on a certain performance, and उसका लिए market cap or price is always determined. So you have to learn to read between the lines. There are no friends or foes. The stock market is the king, और वही teacher है. तो मैं आज की डेट में बहुत humble हूँ क्योंकि शेयर बाजार हमेशा right है. And like you said, a bias is always created if we have dependence on someone. You let the numbers speak for them, and you must have your credence check. So like you said, credence check is your own hard work. कोई ऐसी चीज नहीं है जो फ्री लंचेस नहीं है जो टीवी देख के आप सोचो फ्री लंचेस थे तो 8,000 रुपए थे जब फियर था, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर टीवी देख के वैसे ही हाई था. अब 18,000 रुपए आप बेचना नहीं चाहते क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं है. तो ये मार्केट की डायनामिक्स हैं जो ना आप ना मैं ना कोई कर सकता है. द मार्केट इज ऑलवेज राइट. ट्रस्ट प्रमोटर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. डू योर ओन डिलीजेंस. संदीप भाई आपका क्या व्यू है इस पे? बिकॉज आपके पास 400-500 कंपनीज अंडर कवरेज. So if I have to take a rough guess, how much percentage of companies do you really meet? मैं percentage देखूं 400-500 में से आप how percentage of promoters you have actually met?
नहीं नहीं, मिलने का काम ही नहीं करते हैं, वेरी फ्रेंकली। अच्छा, मिलने से आपका एक बहुत अच्छा जो एक पॉइंट था ना कि बायस्ड हो जाते हैं। मिलने से तो हर आदमी अच्छे से ही मिलता है, और वो इतना पैसा वाला आदमी है तो मिलेगा, वो खातिरदारी इतनी कर देगा कि आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो, वेरी फ्रेंकली। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू चेक द क्रेडिट रिपोर्ट्स, कॉन कॉल्स उनको पढ़ते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं, और उससे भी ज्यादा आजकल अनिल जी एक बहुत अच्छा शो करते हैं, नॉट बिकॉज आई कम ऑन जी बिजनेस, प्लीज, न्यूज पर व्यूज, ये शो सबसे बढ़िया शो आता है। ये जैन साहब के जेम्स, भसीन के हसीन शेर, वरिंदर जी का मंडे का, इन सबसे ऊपर एक शो है न्यूज पर व्यूज। इट्स एन अल्टीमेट शो, बिलीव मी, डोंट टेक इट अदरवाइज। इसको जरूर से देखिए, इसमें हर दिन 2 मैनेजमेंट आते हैं, इसको पढ़िए। मैं रोज कॉम्प्लीमेंट करता हूं अनिल जी को, मैं मैसेज करता हूं कि इट्स अ वेरी गुड शो विच यू हैव स्टार्टेड में 2 साल पहले। और वहां पे जो मैनेजमेंट है उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के मैं करता हूं। ऐसे में एक आईपीओ में फंसा हुआ हूं, मैंने बॉडी लैंग्वेज देख के और थोड़ा आईपीओ में प्रोमोटर अच्छा लगा, आईआईटीएन लगा, उसमें सीधे वो 2 लाख की एप्लीकेशन पहले लगती थी, सीधे 1,75,000 का अलॉटमेंट आ गया। अब मुझे शेयर का नाम याद नहीं और मैं लेना भी नहीं चाहता। बाद में देखा सीधा उसी स्टॉक में मेरे को 1,20,000 रुपया का लॉस, सिर्फ 55,000 रुपया रिकवरी हुई, बिकॉज आई गॉट इंप्रेस्ड विद द डिग्रीज एंड बिकॉज आई गॉट इंप्रेस्ड विद दैट मैनेजमेंट ऑन टीवी। सो आई थिंक बहुत सारे वेज होते हैं। मैं उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता हूं आजकल, मैं उसकी क्वालिफिकेशंस देखता हूं, मैं इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखता हूं, फिर मैं उसकी नेक्स्ट जेन देखता हूं कि वो लोग कितने इन्वॉल्व है इसमें। फिर ये 6-7 पैरामीटर्स मेरे प्रोमोटर्स को चुनने के हैं, वो देख। मुझे मिलने की मैंने कोशिश की थी 2-3 मैनेजमेंट से, मिलके मुझे मजा ही नहीं आया, और बाद में देखा कि वो स्टॉक बहुत चलते हैं। कई बार होता है ना, अपने जानकार लोगों की कंपनी होती है, उसमें भरोसा ही नहीं आता है, और वो सामने पड़ा रहता है अपने पास स्टॉक, और वो मल्टीबैगर बन जाता है मार्केट में। तो कॉर्पोरेट्स लोग की देखने के तरीके अलग होते हैं, अपन क्या होते हैं, बायस्ड वे में देखते रहे बचपन में। मैंने ये ऐसा अंडरस्टैंड। सो लास्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ मच, कितना बड़ा टीम होगा सर आपका रिसर्च टीम? मेरे 6 जने हैं, और बाकी मैं व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सारों पे मैं पर्सनली रिसर्च करते रहता हूं सारे लोगों से, और मेरे पास 7-8 मेरे इंटर्न्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम काम करते हैं। सो आई कीप डूइंग, एंड सीएस एंड सीएफएस जो भी इंटर करते हैं उनसे मैं बहुत काम लेता हूं। सो आई रियली लव सीएस एंड सीएफएस जो कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। सो मैं ना सर लास्ट के 10 मिनट ना एक रैपिड फायर राउंड कर रहा हूं, तो पीयूष भाई को भी इसमें, मैं पीयूष भाई को भी इनवाइट कर रहा हूं इसमें फॉर रैपिड फायर राउंड। एज आई सेड, दिस इज अ रैपिड फायर राउंड, 4 लोग हो आप। आई वांट वेरी स्मॉल आंसर्स, अच्छा एक वर्ड का आंसर, प्लीज उसको बड़ा बड़ा डिस्क्राइब मत करना, क्योंकि हम सब टीवी वाले हैं तो हमें मजा आता है ज्यादा बोलने में, ठीक है ना? संदीप भाई थोड़ा इमोशंस कंट्रोल करना अपने आप, ठीक है? मैं बोलने वाला था, मेरे तरफ था। चलो, सो आई विल गो स्टार्ट विद बग्गा साहब। बग्गा साहब, if you were not you, who would you like to become? If I was not myself, सोचा नहीं वरिंदर, because बहुत यार मजा खराब मत करो क्या- हमारा। okay, so the person I फिर वही लगेगा, बहुत बड़ा लगेगा, वॉरेन बफेट अगर होते तो। ठीक है, कुछ भी सर आपका, यू आर द पैनलिस्ट, आपका जो मन करे। वसीम साहब, गुरदास मान। I love you sir, I love you, ये बात बनी। पीयूष जी, हाँ, अरे सर, can anyone give mic to वसीम साहब? वरिंदर, गुरदास मान, जो आदमी एंटरटेन कर सके और अच्छा बिंदास बोल सके ना, आज 15 पाउंड जी करता, वो है, वो होना चाहिए था बिंदास। चलो तभी मैं आपसे गुरदास मान का गाना पक्का गवाऊंगा आज मैं, ठीक है ना? क्या लिखना है तो कन्विक्शन रखो, तभी पैसा बनेगा। सही है। पीयूष भाई, आपका? पीयूष जी, इस पे सही में सोचा नहीं है, राइट? जो मन में है बोल दो यार। अमिताभ बच्चन एक ऐसे व्यक्ति है जिनको नमन करते हैं अभी। ठीक है, संदीप भाई। हाँ मुझे कोई फिल्म स्टार बनना था एक्चुअली, मेरी बहुत इच्छा थी। अब नहीं बन सकते, 45 साल के हो गए, बट मैं मिठी भाई कॉलेज में पढ़ता था, और मेरे साथ विवेक ओबेरॉय पढ़ता था, विद्या बालन मेरी बैचमेट थी, ये सब काफी लोग थे। तो मुझे लगा कि यार, और लोग बोलते भी थे मूवी में दिमाग लगाओ, तो मैं और तो कुछ नहीं बट एक मूवी स्टार जरूर बनना चाहता था, बट वो बने नहीं। बाकी ठीक है, स्टार नहीं बने सर, पर जेम बन गए, डोंट वरी आप, ठीक है ना? संदीप भाई, अमिताभ बच्चन भी सेकेंड इनिंग में ही सक्सेस हुए थे, तो अभी तो आप बहुत उनसे छोटे हैं।
नहीं, अमिताभ चलो सर, चलो लेट्स कंटिन्यू दिस, ओके? बच्चन जीवन के सपने इसी से बग्गा साहब, आपको क्वेश्चन है? वरिंदर सपाट, मैं एक्चुअली मेरे एक रिलेटिव है, मैं उनका जैसा बनना चाहता हूँ एंड आई विल एडमिट दैट, मतलब लोग जानते भी होंगे मिस्टर अशोक पाटनी, जिनको ही इज द चेयरमैन ऑफ वंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज, वंडर मार्बल, वंडर सीमेंट, वंडर होम फाइनेंस जो लिस्टिंग होने वाली है जिनकी, एंड आरके मार्बल ग्रुप है। मतलब मुझे ऐसा लग, एक बहुत सीरियस आंसर दे रहा हूं मैं, मुझे लगता है कि भगवान आप मैं बोला ना, आपको टीवी वालों को बहुत बोलना अच्छा लगता है, आपको एक या दो शब्द बस प्लीज, इमोशंस हमारे कभी रुकेंगे नहीं सर। टाइम खत्म हो रहा है अपना। बग्गा साहब, which is one stock which you will buy and you want to keep that stock for next 3 to 5 years? 3 to 5 years. हाँ जी, हमारा कोई डे ट्रेडिंग का काम नहीं है, आप आराम से जिसको आप रख सकते हो, आपको लगे बॉस उसको रखना ही रखना मुझे। I have bought in the last 3 to 4 years. I bought Shivalik Rasayan. I bought around 300. It went to 1200. अभी फिर 800 पे है। I think यहाँ से 2400-2500 जाने की है उसको। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। ठीक है, ठीक है। शिवालिक रसायन is one of the companies which you will buy. बसीर साहब, SW और यूनियन बैंक इंडिया के अलावा आवाज नहीं आ रही सर। I am fully invested as a stock option in IIFL Securities, and I think brokerage stocks will do extremely well over the next 3-5 years. और मुझे लगता है 95-97 is a throwaway. As a disclosure, I have stock option. और दूसरा, I am accumulating ABSL AMC. I think AMC business are there for the next 3, 5, 10 years. So I am very, very bullish on ABSL. It's trading at a 20% discount to the issue price. And I think AMCs and brokerages will do very well over the next 2-5 years. पीयूष भाई, ये तो आसान क्वेश्चन आपके लिए। I will go with Dr. Lal Pathlab from healthcare. Right, a good market share company with बस संदीप भाई, एक कंपनी का नाम। अच्छा, ये पूरी लिस्ट है, ये जो लाल है उनके टारगेट्स अचीव नहीं हुए और जो ग्रीन है उनके टारगेट्स अचीव हो गए। एक कंपनी का नाम मैं बोला आपको ना, मैं फिल्म स्टार ही हूँ आप यार, आपको बोलने का बहुत, एक नाम देता मुझे। ऑन अ सीरियस नोट, HDFC लिमिटेड। अब लगेगा कि अरे क्या नॉर्मल सा नाम दे दिया, बट बिलीव मी, आई लव दिस स्टॉक। I can't believe this. आप वैसे दूसरों को सब जेम्स देते रहते हो, यहाँ पे आके आप HDFC बोल रहे हो। I was thinking HDFC हमारे बग्गा साहब बोलेंगे। बग्गा साहब is more, confident than you in शिवालिक रसायन। जो बोला वो एक मेरा जेम स्टॉक था। एक शिवालिक बायोमेटल है, which is one company which I like. शिवालिक बायोमेटल और HDFC। हाँ, सॉरी, शिवालिक बायोमेटल और HDFC। शिवालिक बायोमेटल। चलिए, HDFC अब आपने माना नहीं आंसर, तो शिवालिक बायोमेटल बोल देता हूं मैं। चलो ठीक है सर। बग्गा साहब, which is the sector you are most bullish on? अगर इंडिया जो भी होता है, 5 ट्रिलियन होता है, 6 ट्रिलियन होता है, कभी भी होता है, एक सेक्टर जो आपके हिसाब से बहुत बड़ा टेलविंड है इस सेक्टर में, कौन सा है आगे जाके इन द नेक्स्ट 1, 2, 3, 5 years? 1 year industrials, Basin साहब का भी फेवरेट है L&T. I think industrials is poised to take off. capex आ रहा है बहुत देर बाद। और 3 to 5 years financials कहीं नहीं है वरिंदर, अपना पेनिट्रेशन ही इतना लो है, तो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, AMC हो, सब दौड़ेंगे। फाइनेंशियल्स अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है इंडिया में, वो फाइनेंशियल प्रॉफिट्स टू GDP रेशियो आप देखिए, देयर इज अ लॉन्ग रनवे इन इंडिया। कुछ भी हो, ये तो कमाएंगे ही, और एवरी टाइम दे वेट देयर बीक, एवरी टाइम द मनी पासेस देयर सिस्टम्स, दे आर एबल टू मेक सम मनी। बसीन साहब, इतना कोई फर्क ही नहीं पैदा, आपका तो स्टॉक ही देखने, आपका सेक्टर देखने नहीं है। Can you repeat it, Virinder? क्या कहना कि मैं पूछ रहे हैं कि which is the sector you think you will buy, which you are most bullish for the next few years, that this is one sector which you have to keep in your portfolio, considering we are talking about $5 or $6 trillion. Correct. So मैंने आपको बोला ना, one, the financial services, which is asset management, brokerage, custodian, and like you said, industrials. तो L&T, ABB, Siemens, ये एक 10 साल के बाद चलने को आए हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रोथ आर वेट। और सेक्टर बोल दूं, आई हैव बीन वेरी बुलिश ऑन IRB इंफ्रा। और अभी लंदन और UK के वीजास नहीं मिल रहे, लेकिन लोकल ट्रैवल इज ह्यूमंगस। फास्ट टैग इज अ नेसेसिटी।
I think it's a no-brainer. 15 years के बाद, lot of companies which were errant in their performance are now seeing the right path. Sovereign funds are putting money, and I think this is very stable businesses because reopening and road usage is going to be a huge business opener. सर कौन सा सेक्टर से दूर रहेंगे बसीन साहब? नहीं, अभी अगर दूर रहना है तो थोड़ा सा फार्मा को अवॉइड करूंगा एंड थोड़ा सा आपका कंजम्पशन, particularly the some of the staples. पंकज साहब आपसे नहीं पूछा मैंने, सॉरी, ये कौन से सेक्टर से दूर रहेंगे आप? I would say consumption is in trouble. Prices are going up, and mostly the everything is factored into growth. बहुत मुश्किल है वरिंदर. और दूसरा, very highly valued जो ये है new companies, the new digital age companies. I have not participated in the IPOs, but what I am doing is I am buying a little of them and creating a portfolio of these. I am not very convinced, but one or two of them will be the Tesla or Amazon of India. And I'm, again, everybody runs to their life script, as you mentioned, Varinder. So because of my Oracle, because of a few others, which I bought very early and which have handsomely rewarded me, I am betting on these that 8 out of 10 will be running aground. But एक या दो जो चल जाएगा वो 100x देगा और वो 10 साल का मेरा नजरिया है. So I am buying these new age companies with a lot of skepticism, not for maybe they'll half in the next 2 years, they will go down 50%. Maybe है, maybe not. Got it, sir. सर ये रैपिड फायर राउंड है जी, आप भूल जाते हो हमेशा. Okay, sorry. पीयूष भाई, कौन सा सेक्टर मोस्ट बुलिश और कौन से सेक्टर से दूर रहेंगे? प्लीज सेक्टर के नाम बस. Retail, like department store or e-commerce, most bullish, and will stay away from this publishing type of stock, broadcasting and print publishing. Yeah. Thank you. सर ये संदीप भाई को थोड़ा पकड़ के बैठना चाहिए, ज्यादा बोलते हैं. संदीप भाई बोलिए. बोल दूं? तो मन करे यार. Exchange stocks. I love exchange stocks like MCX. आने वाला BSE, IEX, ये सारे एक्सचेंज इकोसिस्टम पर से पार्ट फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. ये सेक्टर मुझे बहुत ज्यादा बुलिश हूं. सब कुछ भी चलेगा, ये चलने ही चलने हैं. सो इकोनॉमी अच्छी चलेगी तो एक्सचेंज स्टॉक्स चलेंगे, कुछ नहीं चला तो भी ये चलेंगे और लिस्टिंग रोज होनी है. सो एक्सचेंज स्टॉक्स वन. एंड दूसरा जो नहीं लेना है वो स्टॉक्स में बग्गा जी के साथ हूं. मुझे थोड़ा सा न्यू एज कंपनीज से मैं थोड़ा स्केप्टिक हूं, तो मैं डरता हूं वहां पे स्ट्रैटेजी अलग रहेगी. सो मुझे इतने हाई वैल्यूएशंस वाले स्टॉक समझ में नहीं आते. वेरी फ्रैंकली, हो सकता है मेरी रिसर्च कमजोर हो, मैं नहीं समझ पाता हूं. Bhagga sir, what is the biggest regret if you have in the stock market? Biggest regret है HDFC बैंक ज्वाइन नहीं किया. हम सब सिटी बैंकर थे. हमारा बिग बॉस आदित्य पुरी was starting it, लाखों के शेयर दे रहे थे उस टाइम, and these are pre split shares. तो वो ज्वाइन कर लिया होता तो आज 400-500 आराम से बने होते जेब में. तो जिन्होंने ज्वाइन किया उनके वारे न्यारे हो गए. वो बिगेस्ट रिग्रेट है लाइफ का. वसीम साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ कुछ होगा नहीं, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ पंजाबी हो. आप तो गुरदास मान के फैन हो, आपको तो रात को एक मस्त दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं, बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है. हाँ, कुछ विनर्स को जल्दी भेज दिया, बट इट्स पार्ट ऑफ द गेम. मुझे 32-33 साल हो गए. आई एम प्राउड एंड हैप्पी टू बी देयर. और अगर लोगों को उससे गाइड मिले, विजन मिले, दैट्स माय बिगेस्ट मंत्रा. I am not here to make too much money. I am happy and content. But the moral of the story is how much conviction you have and how much you can learn from your mistakes. So that's the key. And stock markets are all about your passion. जो तुम करते हो वरिंदर, जो हम करते हैं, वो passion है. उसमें पैसा सामने वाले को बनाना हो ना हो, उसका कुछ मुकद्दर, कुछ लक है. लेकिन हमारी तरफ से genuinely जो हम आपको पास ऑन कर रहे हैं, वो नॉलेज है. अजय भाई 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, भागो मत अभी, ठीक है ना? 5 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा. थैंक यू. I'm there till 5:40. आराम से करिए. नहीं, आप मैसेज आप थैंक यू बोले जा रहे हो. अभी थैंक यू नहीं, फिर एकदम खत्म हो जाएगा ना. नहीं खत्म होने दूंगा सर. मैं आपसे 3-4 चीजें और निकालनी है. पीयूष भाई, आपका कोई रिग्रेट? शुरुआत के समय में बहुत ही कम क्वांटिटी में शेयर लिए क्योंकि बाजार समझ में नहीं आता था, राइट? अभी ऐसा लग रहा है कि काफी कम इनिशियल लेवल पे लिए, पर चलो, डेट फॉर लर्निंग. नो, गुड. संदीप भाई, इन्वेस्टिंग बहुत लेट शुरू की लाइफ में.
दो, ज्ञान बहुत दिया टीवी पे, मगर खुद ने इन्वेस्टिंग बहुत लेट शुरू की, वेरी फ्रैंकली। और दूसरा जो मुझे रिग्रेट है कि आई एम अ ब्रोकर फर्स्ट, तो मैं ब्रोकर जितना बड़ा होना चाहिए उस हिसाब से हम लोग शायद नहीं बना पा रहे हैं उतनी बड़ी ब्रोकरेज फर्म। आई डोंट नो व्हाई, बट यस ठीक है, अभी भी साइजेबल है, 35-40 हजार क्लाइंट्स है, बट स्टिल आई फील दैट जो पोटेंशियल है उससे बहुत बड़ा और हो सकता है। सो लेट्स सी, वी विल, रिग्रेट नहीं है, आई थिंक दैट्स द एम्बिशन एंड दैट्स द एस्पिरेशन आई हैव, वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी सर, हम हमेशा मार्केट 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 की बात करते रहते हैं, स्टॉक स्टॉक की बात करते रहते हो। वी कांट हियर यू अजय जी, आपका मेरे ख्याल में बग्गा साहब म्यूट पे हुआ। हाउ मच टाइम यू एक्चुअली गिव टू योरसेल्फ और योर फैमिली? सच्ची बताना, बाकी हफ्ते में आप एक बार 2 बार भाभी जी के साथ या किसी और के साथ डिनर के लिए जाते हो? ये किसके लिए सवाल है वरिंदर जी? ये आप ही के लिए सर। हाँ, नहीं, मैं तो बिल्कुल, वी आर बोथ ऑन द सेम पाथ ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, तो हमारे लिए बहुत आसान है। वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड बहुत लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए कि विद होम यू हैव शेयर्ड वैल्यूज एंड शेयर्ड प्रायोरिटीज, तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो बोथ ऑफ अस वर of that bent. We met in Citibank only and our careers also went on together. तो बहुत lucky हूँ, बहुत fortunate हूँ वरिंदर जी। नहीं, बसीर साहब, आपकी फोटो तो मस्त देखता रहता हूँ, फैमिली के साथ घूमते हो, यू नो, पूरी की पूरी फैमिली। आप एक्चुअली कितना टाइम देते हो फैमिली को, और एक होता है ना खुद को, अपने आप को? अब पहली बात तो ये कहूं कि आपने वो सवाल मेरे से पूछा था, ठीक था। बग्गा साहब जैसा जेंटलमैन एनालिस्ट मैंने लाइफ में नहीं देखा। ही इज अ थॉरो जेंटलमैन एंड आई नोन फ्रॉम सम टाइम। ए बी, हमारी भी पंजाबी है तो आंख और ये, लेकिन शेयर बाजार ने सारे वाइसेस दूर कर दिए। ना पीते हैं, ना खाते हैं, ना पराई औरत को देखते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान से यही होता है, स्टील अथॉरिटी का भाव वापस आ जाए, भगवान जो कहेगा कर दूंगा। सो वीरेंद्र, ऑन अ लॉन्ग शॉट मैं काफी पॉपुलर हूं, हमारे आरएम्स को बिजनेस मिलता है, और 3-4 हफ्ते से फिर मेरा सैटरडे संडे बिजी होने लगा है। इट्स अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि संडे तक आपके पास शेयर बाजार है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लास्ट वीकेंड मैं गुजरात से आया, उससे पहले चेन्नई। मेरी वाइफ कह रही थी पता नहीं रात को भी तुम शेयर की बात कर रहे थे। तो जो है, शेयर बाजार आपकी दूसरी वाइफ है, और उसके अलावा आपका फैमिली के साथ डिवाइडेड इंटरेस्ट ही रहेगा। नहीं, बट ये अच्छी चीज नहीं है ना सर। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आप जितने भी 40, 50, 60, 70 साल के हो जाओ, या इतना एक्सपीरियंस मिल जाए, ये कहीं ना कहीं शेयर बाजार ज्यादा थोड़ा सा अपने आप को खुद से या फैमिली से दूर भी कर देता है। तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? अरे अब टू, इट्स टू लेट टू रिपेंट दैट। Just let me grow lying down only, because travel and constant जो interaction है, आपको पता है how tedious this job is. Even 6 to 5:30 in the evening is less. So जैसे आपने कहा, these are some of the negatives, because family life does suffer. Let me be honest. Or if you handle big treasury books or derivatives, then your sole interest becomes the money. But I'm more or less past that, because experience and handling pressure is now in your genes. सर, मैं पीयूष भाई आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ये क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ, एक और रैपिड फायर है आपके लिए। ये मार्केट हमारा फ्राइडे को गिरा, कौन सा स्टॉक लिया आपने? एक स्टॉक का नाम बताना। रिपीट सर, रिपीट। कौन सा स्टॉक लिया आपने फ्राइडे को जब मार्केट गिरा था? डॉक्टर लालपत लैब। अच्छा, संदीप भाई, आपने कौन सा स्टॉक लिया पर्सनल में फ्राइडे को? बंसल जी, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। बसीन सर को अभी जाना है, उनको फ्लाइट पकड़ना है। बसीन साहब के लिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। बसीन साहब, एक लास्ट अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ प्यारा जा गुरदास मान ਦਾ गाना गा के जाओ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। हाँ बोलिए सर। एक गुरदास मान का गाना सर, एक लाइन गुरदास मान दी बस। फिर आप जा सकते हो। अरे नहीं वीरेंद्र, अब तो एज हो गई यार, हम तो 59 साल के हैं भाई, 40-45 साल के। आपकी आवाज भी दम है यार बसीन साहब, क्या बात करते हो? तो वो ये है कि देख के चुंडी लेके कुड़ी खली दिल करे कि भंगड़ा पाउन नु जी करता। थैंक यू बसीन साहब, थैंक यू सो मच। Sandeep sir, thank you very much for sparing time and coming here. Now I request Neeraj Agarwal to please offer vote of thanks for Sanjeev Bhasin sir only. बसीन साहब का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया।
5-20 का। उसके बाद अपने सेशन चालू रखेंगे। मेरा एक ही क्वेश्चन है सर, एक ही क्वेश्चन है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है। बग्गा साहब, अगर आपको मौका मिले मिस्टर मोदी से एक क्वेश्चन पूछने का, क्या पूछोगे आप? अभी ज्यादा सोचना नहीं है, नहीं तो फिर आप कुछ कहानियां बनाओगे। नहीं, डिमोनेटाइजेशन क्यों किया, हमारी 2 साल की ग्रोथ बर्बाद कर दी, क्यों तो ठीक है। डिमोनेटाइजेशन? वसीम साहब, वुड यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन? मैं यही कहूंगा मोदी जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को रिवोक कर दीजिए। मेरे क्वेश्चन ही इतने अच्छे हैं, वसीम साहब जाते ही नहीं आए, 10 मिनट और बैठेंगे। पीयूष भाई, आपके लिए, पीयूष भाई, द सेम क्वेश्चन, इफ यू कैन आंसर। प्रश्न नहीं पूछना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बार हमने हमारे राज्य में वो जैसे सीएम थे तो हमने देखा था कि हम उनका अपोज करते थे बहुत सी चीजों में, पर फिर पता चला कि वो फायदे कारक थी, तो अभी ऐसा लगता है कि क्वेश्चन न करें। आप संदीप भाई? नहीं, बिल्कुल, देखिए डीमोन तो है ही है एक चीज, और कुछ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो अभी लगा था, जो हटाया, और हटा के जो अलग रूप से लगाया, वो बहुत ज्यादा टैक्सिंग है, एंड एक्चुअली इट्स हर्टिंग, वेरी हर्टिंग। सो लेट्स सी उस पे कुछ हो जाए। और बाकी ये टैक्सेशन स्टॉक मार्केट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट वो थोड़ी पॉलिटिकल हो जाएगी, सो आई डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज। तो एक क्वेश्चन सर वसीम साहब, आपके जाने से पहले, कि वन लास्ट एडवाइस व्हिच यू वांट टू गिव द इन्वेस्टर्स हु आर हियरिंग यू, द बडिंग इन्वेस्टर्स यू आर, यू नो, जो आपको सुन रहे हैं, एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे जिनसे वो और अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकें? तो वीरेंद्र, सिंपल चीज है, लर्न द डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। ट्रेडर भाव के साथ सौदा करता है, उसको बायस नहीं होता, और इन्वेस्टर बिजनेस लेता है। नेवर मिक्स द टू, नेवर लेट द ट्रेडर इन यू बिकम द इन्वेस्टर, एंड नेवर लेट द इन्वेस्टर इन यू बिकम द ट्रेडर। अगर आप ट्रेड करते हो तो भाव के साथ करो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो ये विजन लेके चलो कि मैं अपना स्पेयर कैपिटल लगा रहा हूं। डोंट यूज लीवरेज ऑन बोथ साइड्स which can be, unless you understand the nuance. सही है, बिल्कुल सही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन सर, थैंक यू सो मच। ओके वसीम साहब, मजा आ गया। पीयूष भाई, आपका व्हाट इज द लेसन व्हाट यू वांट टू गिव? एक लेसन जो आप बताना चाहेंगे, जो आपको सब सुन रहे हैं। प्लीज रिपीट सर, ताली बज रही थी, नहीं सुनाई दिया क्वेश्चन आपको। कि ऐसा क्या एक लेसन है जो आप सिखाना चाहते हो जो बडिंग इन्वेस्टर्स हैं, कि ये चीज कीजिए तो आप और अच्छे इन्वेस्टर्स या अच्छे इन्वेस्टर्स बन सकेंगे? रेगुलरली इन्वेस्ट करें, क्योंकि बहुत से यंग लोग हैं, जैसे मैंने भी 10 साल तक पहले शुरुआत में कोई इन्वेस्ट नहीं किया था, तो वो रिग्रेट रहता है, पर रेगुलरली इन्वेस्ट कर और इसमें डिसिप्लिन रखें, तो पैसा बनना है। कुछ शेयर नहीं चलेंगे, कुछ अच्छे चलेंगे, बराबर ना संजय जी? गॉट इट। संदीप भाई? अरे संदीप भाई के पास बोलने का कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि कोई भी स्टॉक का नाम आए, कोई भी जना दे, मतलब जैन साहब के जेम्स में आए, कहीं भी आए, स्टॉक खरीदने के पहले प्लीज रिसर्च कीजिएगा। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में फुल टाइम आ रहे हो तो सारी चीजें सीख के आइएगा। ये मत बोलिएगा कि मैं खाली फंडामेंटल एनालिस्ट हूं, मैं खाली टेक्निकल एनालिस्ट हूं, मैं फंडामेंटल नहीं देखता, और मैं फंडामेंटल हूं, मैं टेक्निकल नहीं देखता, और मैं ऑप्शंस नहीं आता। सारी चीजें अगर करना आती हो तो प्लीज आइएगा। और या फिर आप प्योरली, जैसे बसीन साहब ने कहा कि आप ट्रेडर हो तो आप चार्ट देख के काम कीजिए, फंडामेंटल्स, अगर आप लंबे इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल्स में। बट मेरी राय ये रहेगी कि अगर अच्छे से पैसा बनाना है तो ये बहुत, मतलब ये स्किल बहुत टफ है। मैंने तो इसके ऊपर वेबिनार भी किया, ब्लेंडिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स विद ऑप्शंस। मैं दिन भर रैपिड फायर राउंड है संदीप भाई। जैसा आंसर नहीं होगा। मैं समझा आपके फीलिंग, समझा। बसीर साहब को जाना है और बग्गा साहब मुझे आंखें दिखा रहे हैं बार बार। मैं आंखें नहीं दिखा रहा, मैं कह रहा हूँ वी हैव नॉट हर्ड वरिंदर, एंड लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग वरिंदर्स व्यूज, बेस्ट सेक्टर्स, अवॉइडेबल सेक्टर्स, टॉप स्टॉक्स। So give your picks also, Varinder. People want to listen. अजय भाई, आज मैं क्या बोलते हैं, आज मैं सिर्फ वो हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन। जब मेरा टाइम आएगा बोलने का, मैं खूब बोलूंगा। आज के दिन मेरे स्टॉक्स और सेक्टर सब अलग है सर आप लोगों से। आई डोंट नो क्यों अलग है, बट बहुत अलग है जो आप लोगों ने बोला। पर बग्गा साहब, आप एक लेसन सिखाइए हमें कि ये चीज करो ताकि आप अच्छे इन्वेस्टर्स बनोगे। ऑप्टिमिज्म बहुत जरूरी है, बहुत बिकॉज एक इन्वेस्टर के लिए, मेरे बॉस थे एक 96 ईयर ओल्ड थे, फिल कैरी करके, जिन्होंने पायनियर फंड्स खोले थे 1929 से, और अभी तक हर साल उस फंड ने डिविडेंड दिया। 96 की उम्र तक वो काम करते थे, और 2 बारी आई कुड मीट हिम इन बोस्टन,
एंड वो यही कहते थे कि ऑप्टिमिस्टिक रहोगे तो अच्छे इन्वेस्टर बनोगे। बिल्कुल। तो अब आप कह सकते हैं वो बहुत सिंपल है, आप ओवर नहीं, नहीं, सिंपलीफाई सर। कर रहे हो, बट ये 96 ईयर ओल्ड के तजुर्बे के बाद, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर देखे थे, हिटलर देखे थे, सब कुछ देखा था उन्होंने, और वो 90s में पास अवे किए एट द एज ऑफ 96 एंड वर्किंग टिल द लास्ट डे। सर ये एक दो शब्द होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं बट बहुत कठिन होते हैं। जैसे आपने ऑप्टिमिज्म बोला, जैसे हमारे घर पे बोलते हैं बी ऑनेस्ट। ये एक वर्ड है बट सबसे मुश्किल है एक्चुअली में पालन करना। वसीम साहब ने जैसे बोला ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, ये बहुत सिंपल है बट इसको लागू करना ही सबसे मुश्किल है, और जो डिसिप्लिन से करके उसको बहुत पैसा बनता है। बट सर एंड द एंटायर टीम जो ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक मैं सारी शाम बोलता रहूंगा, मेरे पास क्वेश्चंस खत्म नहीं होंगे, बिकॉज ये लोग इतने समझदार हैं, इनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम ऑल दिस स्टॉलवर्ड्स। सर लेकिन अभी वसीम साहब जा रहे हैं, उसके बाद अपने 10-15 मिनट का सेशन, जैसे बग्गा साहब भी बोले कि 5:40 तक फ्री है, सर आपका भी 10 मिनट और लेंगे, क्योंकि कुछ ऑडियंस है जो आज तक अभी तक आपने क्वेश्चंस रेज किए, आपसे भी कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो प्लीज बी हियर फॉर 10 more minutes आफ्टर felicitation of Basin sir. Thank you, sir, for providing me this wonderful opportunity of giving a formal vote of thanks to none other than Sanjeev Bhasin ji. Sir, on behalf of our association, I cannot express more gratitude that you have taken time out from your busy schedule and flown all the way from Delhi and been part of our family in today's session. मैं तहे दिल से विक्का फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, एंड आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट सी बजरंग अग्रवाल टू कम फॉरवर्ड एंड ऑफर अ फॉर्मल वोट ऑफ फॉर्मल मेमेंटो टू हिम। Sir, we would have loved to have more of you, but given your flight schedule, I wish you a safe journey. And thank you, sir. चलो बस मिलते हैं। थैंक यू पाजी। Thank you very much. Thank you, sir. Over to Vasudev ji. यस सर, बंसल सर, जैसे आपने सभी से पूछा कि कौन सा शेयर पसंद है, कौन सी सेक्टर पसंद है, तो ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा सेक्टर पसंद है, सर मुझे रहना चाहते हैं। तो मुझे सर ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये एक सेगमेंट में जिसमें मैं अपना बहुत पैसा लगा रहा हूँ और मैं बहुत लगाता रहूंगा। तो ये एक सेक्टर है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, आज से नहीं है, कम से कम 2 साल से है। सो वी हैव इन्वेस्टेड इन फ्यू कंपनीज, कम से कम 2 साल से हम लोग बैठे हैं, हर भाव पे लेते हैं, बिकॉज हमें अगले 5 साल दिखते हैं इसके। इससे फोकस क्या है कि हमें पैसा जल्दी नहीं बनाना, बट हमें ज्यादा पैसा बनाना है, और हम उन कंपनी से बैठ के आराम से पैसा बना सकते हैं। वो आज नहीं बनेगा, साल 2 साल 3 साल बाद बनेगा, चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। इससे दूर रहेंगे सर। सर टू बी ऑनेस्ट, अपॉर्चुनिटी हर जगह पे आती है सर, ऐसा दूर रहने वाला मन होता ही नहीं अपना। अपना तो होता है जहां अपॉर्चुनिटी आती है वहां चले जाते हैं, जहां नहीं होता तो नहीं होता। बाकी महंगा चीज समझ नहीं आता है, क्योंकि बनिया है तो बनिया लोगों को कुछ महंगा लिया नहीं जाता। बट ऐसा कोई आंख नहीं बंद करते हैं हम किसी भी सेक्टर में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी भी कहीं भी आ सकती है। आंखें खुली रखो, कान खुले रखो, कहीं लगे कि हमें बहुत ज्यादा कुछ हो गया है, वैल्यूएशन ऐसे अट्रैक्टिव हो गए, तो वहां भी चले जाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। बट देन हमें पता होता है कि हम लोग उसको महीने के लिए खेल रहे हैं, 3 महीने के लिए खेल रहे हैं, 3 साल के लिए खेल रहे हैं, उतना पता होता है। आई थिंक द पॉइंट जो संदीप जी ने बोला था, वो बहुत, संजीव सर ने बोला था, बहुत अच्छा बोला था कि आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, वो आपको बहुत क्लैरिटी होना चाहिए। एक अभी जो डिस्कशन में पॉइंट आया कि कोई बोलता है कि स्क्रिप्ट में 1% इन्वेस्ट होना चाहिए, कोई 5%, कोई 10%, 20% तक का भी व्यू आ रहा है, तो आपके हिसाब से क्या स्ट्रेटजी आप? तो अपने सेक्टर में जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल में हमारा कम से कम 40 से 50% होगा इन्वेस्टेड, और हमारा 3 या 4 कंपनीज होता है। सो जब हम समझ लेते हैं धंधे को, स्टॉक को नहीं, धंधे को, तो देन वी गो ऑल इन। वी डोंट जस्ट बाय बिकॉज वो उसका पीई सस्ता है या ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, हम लोग वो करते नहीं है सर। हमें धंधा समझ आना चाहिए, धंधा समझ आएगा तो हम बैठेंगे उस पर, खूब बैठेंगे। तो देन वी गो ऑल इन टर्म्स ऑफ एलोकेटिंग बिग सम, बिकॉज पैसा तभी बनेगा ना सर,
आई एम सॉरी बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग है संदीप भाई से। वो 1% रह के मेरा पैसा बनेगा नहीं, उसको मैं साल 2 साल 3 साल करता रहूंगा। बट अगर मेरे तरीके से, बिकॉज दीज आर कंपनी जो 15 20 25 30 साल से काम कर रही है, वी नो व्हाट दे आर डूइंग, यू नो, वी नो द प्रोडक्ट्स, वी नो द प्रमोटर्स, वी नो द बैलेंस शीट्स इनसाइड आउटसाइड, तो हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है। सो देन वी एलोकेट हाई। तो सर हिसाब से 15-20 स्टॉक्स आर मैक्सिमम इन एनीवन्स पोर्टफोलियो। करेक्ट सर, बैक टू यू, या ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस ले लें क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इज इंटैक्ट। आप लीजिए सर, बाकी पब्लिक कैन आस्क एनीवन एनीथिंग, बट ऑनेस्टली आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट स्टॉक्स। Now time is yours. Raise your hand and ask the question. Please give the mic. Please introduce yourself first. हेलो, आई एम सी विजेंद्र अग्रवाल। सर, आप लोग ने सारे सेक्टर मोटा मोटी कवर किए, लाइफस्टाइल से लेकर एवरीथिंग, बट डिफेंस सेक्टर किसी ने कवर नहीं किया। रीजन स्पेसिफिक मतलब आने वाले दिनों में तो मुझे डिफेंस सेक्टर में भी कुछ लग रहा है कि आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं कि उसको अवॉइड किया है या उसके बारे में कम बात की है, वो बात अलग है। वर्ड भी नहीं आया इसलिए पूछ। हाँ, नहीं ठीक है, मतलब डिफेंस सेक्टर वैसे काफी गवर्नमेंट ओरिएंटेड रहता है, और मैं थोड़ा सा क्या, जहां गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आ जाता है और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, हालांकि ठीक है बहुत सारे स्टॉक्स दिए थे, न्यूजेन टेक्नोलॉजीज देख लो, अब अभी ड्रोन में आया था तो वो स्टॉक मल्टीबैगर बन गया थोड़े दिनों में ही। फिर हल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंपनियां बहुत सारी अच्छी कंपनियां, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट देन ठीक है, मतलब लेना चाहिए, पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हो सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रियली लुक्स गुड, मतलब पहले मैं बहुत रेकमेंड किया हुआ हूँ, और अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, कोचिन शिपयार्ड लुक्स गुड, वो बढ़िया लगता है उस सेगमेंट में, मतलब तो ठीक है। एंड मैं इस पे एक व्यू देता हूँ आपको, और जो मैम पूछ भी रही है ना, अगर आपको HAL अच्छा लगता है ना मैम, जो पूछ रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा जाके ना जो ग्लोबल कंपनीज है, ग्लोबल डिफेंस कंपनीज है, उनका बैलेंस शीट, उनका वैल्यूएशन और उनका साइज देखना। The issue sometimes is that we talk about all these stocks, but we don't understand that globally हम लोग कहाँ पे हैं। बाकी हमने इन पे बहुत काम किया हुआ है, but you have to understand also कि हम लोग यहाँ पे इंडिया में बोल देते हैं कि यार 10, 12, 15 टाइम पे मिलता है, बट आप थेल्स देखिए, आप ग्लोबली जो भी बड़ी डिफेंस कंपनीज हैं, आपको सब 10-15 टाइम पे मिल जाएंगी, और कम से कम 5-10 टाइम्स बड़ी है इन कंपनी से, सब कंपनी से, इंडिया से। So when we give a perspective of some of these companies, it is very important to understand कि global context क्या है। Okay. तो आपको Next question. Thank you, sir. We will take one question from floor and one question from chat Hello. box. गुड इवनिंग ऑल, आई एम CA विकास बथवाल। मैं जानना चाह रहा हूँ कि लास्ट 2 वीक से शेयर मार्केट्स में बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, और फर्दर लास्ट फ्राइडे मतलब कल ही बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है, तो व्हाट इज नेक्स्ट, क्या रहेगा अपना कुछ assumptions की, मतलब अगले 2-3 महीने में या 1 मंथ में क्या है, शेयर मार्केट किस तरफ रहेगा? बग्गा साहब, बग्गा जी लेंगे ये क्वेश्चन। सबसे मुश्किल क्वेश्चन है सर, आगे फ्रंट सर सीनियर भी आप ही है। मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, एंड हमारा व्यू फॉरवर्ड लुकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी खबर आ रही है नीदरलैंड्स में 2 फ्लाइट्स उतरी कल रात को साउथ अफ्रीका से, 600 पैसेंजर थे और 61 पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए, उसमें से 10% उसमें इन्फेक्शन था। अब वो टेस्ट कर रहे हैं उसमें वो ये नया वाला वेरिएंट कितना है उसमें से। तो ये अच्छी बात है कि मार्केट्स एक ही बारी में, एक ही झटके में सारा रिस्क डाल दिया मार्केट्स ने फ्राइडे में। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बहुत डिपेंड करेगा कि ये कितनी तेजी से फैलता है, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आता है इसका, और 2 हफ्ते से पहले हमें पता नहीं लगेगा। ये अच्छी बात है कि उसका सीक्वेंसिंग हो गया पूरा, तो बिल्कुल पता है कि 50 म्यूटेशन है, 30 म्यूटेशन यहाँ पे है, 10 म्यूटेशन वहां पे है, एग्जैक्टली पूरी दुनिया के सब लैब्स के पास उसका सीक्वेंस पहुंच गया। अब वो दवाइयां डाल के देख रहे हैं कि जो दवाइयां बनी थी वो अच्छी हैं कि नहीं उसके लिए, और वैक्सीन कितना। तो सबका कल मैं पढ़ रहा था, जॉनसन से लेके मॉडर्ना,
से लेके फाइजर से लेके एस्ट्रा जो हम यूज कर रहे हैं भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट की एस्ट्राजेनेका ने भी कहा कि हमारा ट्रायल शुरू हो गया है, और मॉडर्ना ने कहा कि 6 हफ्ते में हम वैक्सीन बना देंगे। बट ये है कि ट्रायल करना पड़ता है, टेस्टिंग करनी पड़ती है। 100 दिनों में वो कह रहे हैं हम शिप कर देंगे। तो ये इतना भी बढ़े 2-3 हफ्ते में तो रिजॉल्व हो जाएगा, इन द सेंस मार्केट देखेगा कि 3 महीने में वैक्सीन आ रही है। अगर वर्स्ट टू वर्स्ट है, अच्छी बात यह है कि सब सीख गए हैं, सब क्वारंटाइन कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन पैसेंजर्स को, ट्राई कर रहे हैं कंटेन करना साउथ अफ्रीका के अंदर ही। तो ये मार्च 20 की आपकी सिचुएशन नहीं है। गवर्नमेंट्स के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, 100 साल पुराना थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस नहीं है स्पेनिश फ्लू का, एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है। वैक्सीन हो चुकी है, लगभग 780 करोड़ वैक्सीन दुनिया में लग चुकी है लोगों को। बड़े सारे एंटीबॉडी कॉकटेल्स बन गए हैं, नई नई मेडिसिन बनी है। तो वो सिचुएशन मार्च 2020 की नहीं है। बट दूसरी तरफ नेगेटिव क्या है, ओवर एक्सटेंडेड मार्केट्स थे, वैल्यूएशन कम नहीं थी, तो इस लेवल पे मार्केट्स अपने वेट से भी थोड़ा गिरते हैं। बट इसने बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है। $20 बिलियन की डॉलर लॉन्ग पोजीशन बैठ के लोग लेके बैठे थे, और 20 बिलियन मतलब डेरिवेटिव्स में उसको आप 100-200 गुना कर लीजिए, इस तरह की पोजीशन थी कि डॉलर स्ट्रांग रहेगा। ओवरनाइट वो पोजीशन अब आ गई, येन और स्विस फ्रैंक बढ़ गया। तो बहुत मुश्किल है क्या होगा, बट ये मैं कह सकता हूँ 100 दिन में अगर वैक्सीन ये शिप होने को तैयार है तो 2-3 महीने का ही संकट है, उससे ज्यादा नहीं है। बाइंग अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अभी इमीडिएटली अगले हफ्ते में क्या होगा मुझे कहना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपका थोड़ा लंबा नजरिया है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। Thank you, Banga sir. Rahul, can you Thank you, take sir. from I the will take leave now because my other session is starting. Thank you. 2 minutes? This is the last question. Thereafter, vote of thanks, nothing. Question. No, Yes, one last. because we have Last to question, vacate the hall by 5:45. लास्ट क्वेश्चन एक था अच्छा, one question, please. सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपना आपने पॉइंट्स की बात की, ग्रोथ की बात की, सेक्टर की बात की, मार्केट सबकी की। मेरा एक क्वेश्चन है कि आईटीसी में नेगेटिव रिटर्न आज तक 5 ईयर में क्यों हो रहा है, जबकि तीनों चारों चीज आपकी इसमें मैच कर रही है। इसका प्रोडक्ट भी अच्छा सेल हो रहा है, इसका ग्रोथ भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, फिर ये नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? जब इंडेक्स 7000 से 18000 हुआ तो भी वही प्राइस है और आज भी वही प्राइस है। नहीं, नेगेटिव नहीं है। यस यस, मैं आपको 5 ईयर का दिखाता हूं प्राइस, देखो आप ना। डिविडेंड यील्ड के साथ भी तो कुछ करेंगे ना। डिविडेंड तो सभी देते हैं सर। संदीप सर को रिप्लाई देने दीजिए। हाँ हाँ, देखिए, एक तो कोई स्टॉक पर्टिकुलरली क्यों नहीं चल रहा है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एंड आईटीसी का रीजन है कि कुछ फोकस का भी इश्यू है। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कल उन्होंने कोई नई कंपनी खरीद ली, वो खरीद ली, ये खरीद ली, और बाकी तो आप ज्यादा बताओगे। कलकत्ता वाले लोग तो बोल रहे हैं खाली डिमर्जर होगा तो उसका वैल्यू अनलॉकिंग होगा, पर देखिए, इवन आई रेकमेंड दिस स्टॉक, मुझे भी अच्छा लगता है स्टॉक। उस स्टॉक में बट द थिंग इज कि कहीं ना कहीं जो एफएमसीजी को जो वैल्यूएशंस मिलते हैं, इसको नहीं मिलने का रीजन ये भी है। एक तो सिन स्टॉक है, मतलब वो जो ईएसजी वाले कई लोग आजकल इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ईएसजी जो गवर्नेंस वाले जो लोग होते हैं वो ईएसजी के अंडर में आता है, ये तो सिगरेट की वजह से नहीं करते। वो उसके अंदर तो होटल भी है, पर और होटल तो 3 गुना 4 गुना हो गए, वो क्यों नहीं हुआ फिर? नहीं, तो उसका होटल अभी इतने दिन तक लॉसेस में था ना, वो सेगमेंट। सबके होटल लॉस में है फिर। देखिए, आप ऐसे एसओटीपी एक एक करके स्टॉक्स के अंदर उसके एक एक सेगमेंट देखेंगे ना आप, तो ये नहीं चला था। अब इसका इन्फोटेक बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हो सकता है इन्फोटेक को डीमर्ज करे तो वापस से कुछ वैल्यू आए। नहीं तो मर्ज में फिर उसका वैल्यूएशन क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी आपको मैं बताऊं, देखिए आपको, अब मैंने आपको एक बात बोली थी उस टाइम पे, वरिंदर ने मुझे रोक दिया था। हाँ। आपको अगर फंडामेंटल, टेक्निकल और ऑप्शन आता है ना, ये बात थोड़ी सी अलग टाइप की है। आप पुट बेच के काम कीजिए ना, 200 रुपया का। फ्रेंड्स, ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने 200 रुपया कमाया पुट बेच के पिछले 1.5 साल में। और क्या, और कवर्ड कॉल कीजिए आप, फ्री हो गया। बीपीसीएल, ये सब चीजें क्या ओपन फोरम में थोड़ा अजीब सा लगता है, आपको ट्राई कीजिए। सर यहाँ पे सीखने आए तो कोई नई स्ट्रेटजी देखिए आपने। लास्ट में संदीप जी ने बता दी कि अगर मार्केट नहीं चल रहा है, शेयर नहीं चल रहा है, तो पुट देके भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जिस दिन क्या होगा? प्लीज फ्रेंड्स,
due to time constraints, we are not able to take any more questions. ऑफ स्टेज अपन बात करेंगे. Yes. So thank you very much, Bagga ji, Bansal ji, Jain ji, please. And before I invite Neeraj Agarwal for final vote of thanks, I request CA Nitesh Moore to please come forward to his contribution is immense to make this conclave very successful. And I request President CA Bajrang Rawal, please come and honor CA Nitesh Moore. स्पेशल थैंक्स टू नितेश जी. पहली बार इन्होंने फोन किया था मुझे इस इवेंट के लिए. तो मैं गलत नहीं बुलाया ना. चलिए over to Neeraj. Thank you, Vasudev ji. Rahul, just a confirmation, are Bagga ji and Bansal ji still online? No. ऑफलाइन हो गए. बग्गा जी 5-6 इसका काउंट. Okay. So I take this opportunity again to offer a formal vote of thanks. अभी अपने वर्ल्ड कप T20 कंप्लीट हुआ और अभी न्यूजीलैंड का मैच भी चल रहा है, तो मैचेस के बीच में ड्रीम 11 का एड्स आते हैं और आज हमें सुबह भी डिस्कशन किया ऑन ड्रीम 11 और आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि वी क्रिएट आवर ओन ड्रीम पैनल on stock markets, capital markets, and we are very proud to have all the stalwarts of the stock markets present among us and giving us these vital aspects about the market. So I thank all the learned speakers on behalf of our association for taking time out and sharing their wonderful ideas with us, how to deal in this market, what is the horizon in going forward. सबसे पहले संदीप जी sir, thanks for coming all the way from Jaipur and spending a lot of time with us. And for this, I convey our sincere thanks to you. I request CA Raj Singhania, our past president, to come forward and offer the memento on behalf of our association. A big round of applause for him, please. इतने लर्नेड लोगों के बीच में इतने क्वालिफाइड, क्योंकि मैं सीए बन नहीं पाया था, मतलब मैंने हिम्मत ही नहीं की पढ़ाई करने की. बोले एमबीए फाइनेंस कर लो, तो आप लोग सब सीए तो आप लोग के बीच फिजिकली आ जाए. वर्चुअली तो बहुत वेबिनार्स किए हमने पिछले एक साल में. वही किया थे. अरे बट सीएस आर द बेस्ट. Sir, आपने कहा था you are having people who have not qualified, and so we take a clue from that. सीए बनते तो उसके बाद वो पढ़ लग जाते हैं ना, अलग अलग जगह नौकरी पे जाने लग जाता है. Absolutely. ये प्रैक्टिस का भी आता, वो इंटर होता तो उसमें थोड़ा सा वो रहता, सीख तो जाता सारा. वो एक्चुअली मेरा हर जगह यही रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करना. So this is one more gem from him to us. Thank you, sir. तो वो देसी जुगाड़ है, ये सब ऐसे क्या होता है पैनल में नहीं बोला जाता है. Piyush Patel ji, again, thanks a lot for taking time out, coming all the way from Baroda, and it was the special requirement of our association that somebody comes and gives us the basics that कैसे एक market को देखा जाए global और Indian perspective से, जो आपने बहुत बखूबी दिया. So thank you for that. And next in absentia we have Ajay Bagga ji and Varinder Bansal ji. So in absentia I thank them for being part of this panel, and we have the mementos for them as well, and we would definitely forward that to them in due course, especially Bansal ji, who moderated this panel extremely well, and he dwelled into the minds of these investors, these stock experts, that what goes through their minds while picking up and exiting these stocks. So I think we must congratulate him for these aspects. So thanks a lot for the panelists, and it would not have been successful without the delegates who have been with us since the morning. So I thank them all, and we assure you we will come again with such quality programs for them. Our special thanks to our past presidents. First of all, Vasudev ji for having part of this entire process and helping us in this. Raj for being the MC for the first session, and Rajesh Bhaiya for moderating the second part of the first session. Our sponsors, JRK Stock Broking and Tally,
which is an immense support for us as association in having such programs in near future. And once again, for all our delegates who have been with us throughout the day online, thanks for participating in this program, and see you soon. Thanks a lot. The last point, I request all the past presidents, committee members, please come forward. We will have a group photo with the Jain Saab.